digital capabilities and the achievements which we've done by scaling up things, scaling up to such extent that very many countries are surprised that India can prove that it can scale up digital capabilities, be it in education, be it in health, CoWIN app, or even payments, or in the financial technology areas. So you'll be playing on the digital. We'll certainly be playing up on the demographic, because India is going to have nearly 68% of all its population in the working productive age group by 2030. So if all of them are going to contribute to the engine of growth for India, India certainly can be the engine of growth for the rest of the world as well. So we are going to make that difference in the revival of the global economy, and no wonder we are the fastest growing economy today, this year, as well the next year. And I see that probably being a very powerful engine for the global growth. On the climate concerns that you have, I just want to put in one word as to how India is committed. India has 17% of the world's population. Just please seize the number that I'm telling you. The numbers that I'm telling you, please seize them. 17% of the world's population lives in India. But we have only 5% of the global emissions from India. Only 5% of the global emission is emanating from India, which has 17% of the global population living here. But what about our commitment to climate action? 100%. We've already fulfilled what was committed in Paris, and towards fulfilling what has been committed in Scotland by Honorable Prime Minister, we are scaling up on renewable energy, be it solar, be it wind, be it also nuclear and hydroelectric. So we are well on course in achieving the nationally determined commitments. One last word on the diaspora and its strength. You know, the world has been talking about China +1. So can that +1 be India? Now I'm hearing EU +1 as well. So people who are invested in China may want to continue there, but may also want to find another source from where they can produce and be a part of the global value chain. So India is that, and we would like to pit India as that +1 country when it comes to considerations of those manufacturers who want to get out of China or have one more place from where they can produce. So China +1, we are actively making sure India becomes that successful +1. But European Union as well, if they were going to go through a recession, which is a probability, which many people are now saying highly probable. So there is this temptation for many of the manufacturers who are located in Europe also to look at +1. China +1 is ongoing. European Union +1. And that +1, again, can India fit in that role is the effort of the government of India to make sure that we are able to attract industries which are looking for also setting up elsewhere other than being in Europe. So if all this is happening, with the presence of Indians everywhere, 58 globally leading companies have Indians heading the positions. They are corporations from 11 different countries whose revenue earnings cross $1 trillion and who actually have a market capitalization of $4 trillion. If 58 of them can have Indians, I'm sure many more of them can have Indians as well. But even more importantly, if this is where India is looking for talent pool and also contributing to the global talent pool, it will also be for India to serve, being from India, but for the rest of the world as well.
I've spoken about the digital thing already. We've achieved a lot. We would certainly like to have that available for the entire globe. In just one number, which will tell you the scale to which we have achieved, the UPI, the total transactions in UPI in 2022 was 125 lakh crores within 1 year. And how many transactions did it involve? 7,400 transactions took place, amounting to 125 lakh crores of Indian rupees. So that is the extent to which the digital payment portals have succeeded. So in conclusion, I just want to tell you that because of India's efforts, Honorable Prime Minister's effort to highlight the fact that for a healthy living, you need to have very many things which were inclusive of yoga being taken to the global scale. The year of millets, which is what is going to be this year, 2023, is also because India wants to highlight that if you found a quinoa from Latin America, there have been traditional cross grains in India, ragi, jawar, bajra, and so on, which are also very good for healthy living. So we are promoting that. This year, we shall also have the presidency of the G20, in which we've given a call that for very many considerations, whether it is harmony, whether it is climate action, India believes that it is one earth, one family, and therefore one future for all of which all of us will have to be committed. So the spirit is Vasudhaiva Kutumbakam, and I appeal to all of you, the Indian diaspora, the brothers and sisters who are representing India, carrying India's brand all over the world, and showcasing how exemplarily Indian communities living abroad can lead their lives. To all of you, my humble appeal, do participate in the Amrit Kal. Do participate in building that India which all of us can be proud of by the year 2047. And I thank the Honorable Prime Minister for giving us that kind of leadership which brings in stability, which brings in vision for a future, which believes in untiring hard work, which wants to give the people of India a corrupt-free, transparent, and an efficient government. So thank you all for being here today. Jai Hind. Thank you, ma'am, for such encouraging words and for listing out the achievements of India and the role the Pravasi Bharatiya, who we will now be calling the brand ambassadors of India in the world during the Amrit Kal. With your kind permission, ma'am, I will now like to extend 6 invitations to women we should call the Shakti Punj, or the orbs of power. Ladies and gentlemen, this session's Super 6, Ms. Meetu Bhaumik, Director of Mind Blowing Films and Director of IFFM, she has come from Australia. Ms. Sajini Anaka Reddy, co-founder and executive director of Vision Care Group of Companies and CEO of Savi Beach Resorts, she has come from Zambia. Ms. Kavita Parmar, founder and director of IOU Project from Spain. Dr. Poonam Gupta, OBE, UK entrepreneur and CEO of PG Paper from the United Kingdom. Ms. Devaki Khimji, Managing Director of Al Turki and Al Tasneem Groups from Oman. Ms. Maria Siddiqa Ashraf, Director of Contofield International School from Tajikistan. These women in their new homes, ladies and gentlemen, have brought joy as well as welfare. Inke kartavya path kahin bhi ho, Atma mein Bharat hai. They have delivered in different parts of the globe. Spirit is incredible, India. We are not only celebrating some entrepreneurs in India, we are showcasing the success stories of women and the families who have invested in them. So now we will be beginning the panel discussion, and after a brief introduction of all the panelists, the floor will be open for the audience. In case you have any questions for our guests, please go ahead.
I'm a mere sutradhar, ma'am. I will like to request each one of them to tell us their story. They went to other parts of the world as wives, as daughters, but have come back as entrepreneurs and making all of us very, very proud. With your permission, I'd like to request Dr. Poonam Gupta to tell us her struggles, her life's journey. With your permission. Hello. Hi, I'm Poonam Gupta, namaskar, and thank you for a very motivating and informational speech, if I may say. I moved to Scotland 20 years ago. I was born and brought up in Delhi. I did what has just been mentioned, followed as a wife, my husband who's Scottish Indian. Started looking for a job there, and despite my double degree, nobody was offering me a job because I had no experience in the UK. So I thought about it, worked on multiple ideas which failed one after the other. And then at the time, people were talking about waste paper and how do we recycle. And being a keen reader, I started learning about them. And I managed to convince some manufacturers in Italy to sell me some of their product that I could sell to India. So in 2003, my business was born, PG Paper Company Limited, which is now operating in over 60 countries around the world. And COVID's been tough, but what we looked at, when we looked at COVID, we looked at India, and we started exporting products and manufactured in India. And we export over from 18 companies in India to now 27 countries around the world. We are also, and may I just mention that most of these products that I work in are all in sustainability, are environment friendly. I'm an entrepreneur, and an entrepreneur likes challenges. So I went into multiple fields today. I am in hospitality. I have investments in India. In fact, I am participating in the Amrit Kal in India, as I have multiple investments in startups in India, both in Mumbai and Bangalore, and in fact will be visiting Bangalore in next couple of days. I took really unwell back in 2006, 2007, actually preparing to die. I was misdiagnosed with a 1-year-old child. But I've learned one lesson. I came through that period. I'm here now. That when we focus our energy on positivity, you know, it can help us get through life. At that time, it was my daughter and my young business which kept me going. And I never thought about what was actually wrong with me, even though I was terminally ill. Today, I have offices in 7 different countries, and I sit on multiple boards, including being the chair of FICCI India UK Trading and Manufacturing Council. I take a lot of these positions with a single point agenda, connecting UK and India, and with this FTA, which is currently undergoing between the 2 countries, I hope that 2 of the nations will actually work stronger together. Thank you very much. Thank you. Ms. Pitu Bhaume. Good afternoon, everyone, and thank you for being here with us today. Good afternoon to you, Honorable Minister. And before we start, can I just please extend a huge thank you for the wonderful hospitality to the Government of India and the state government, and also a huge round of applause to the volunteers and the staff workers who've been on their feet, working tirelessly, making us feel so welcome. Thank you. And thank you for the amazing street art, food, everything that we have experienced. My name is Meetu, and I have a film company based in Melbourne, which I started around 15 to 16 years ago. My background is films, arts, no business management at all. I got married and, like a good wife, followed my husband to Melbourne. I went very resentfully, I must add, because I had a good job here, promising career, lots of friends. And like you, my first job in Melbourne was clearing tables at Crown Casino, because nobody would recognize the work that we did in India. And India was not so cool at that time. Like India now, everybody wants a piece of India. But at that time, most people's point of reference for India was
Tendulkar and Taj Mahal. So it was a tricky time, but I loved watching movies. And when I went to watch a film in Melbourne, it was in an obscure theatre, and there were 2 cardboard boxes. One had samosas, and in one you just put your money and you went in. And at that time we still had 35mm reels. So halfway through the film stopped, because the film was playing at another cinema and the reel was coming from there. So it was really like worse than watching a film in a village, you know. And I just felt so frustrated that I kept thinking there has to be a better way to watch films. We have to watch films, the films that we all love and that kind of unite the diaspora in a way, in cinemas, the way other films are being watched. So that's how I started pushing and pushing and pushing the Australian cinemas to start playing our films. Nobody wanted to know Indian films because we are very chaotic and disorganized. We've improved a little bit, but getting there. But thankfully, one of the chains allowed us, and since then there's been no looking back. And I feel really proud to say that today Australia is number 3 for Indian cinema in the international platform. Our films are regularly in the top 10 Australia box office, all Australian box office. Any cinema you go to in Australia, you will have not only Hindi films, but Tamil, Telugu, Punjabi, Marathi films screening there. And I feel so proud that our little company, which is all run by girls, is the only company in Australia that has won the highest grossing foreign film award in Australia. And the good thing about this is that whatever money we generate at the box office, a large part of it comes back to India, comes back to the film industry here. As of today, almost 200 million Australian dollars is being generated at the Australian box office annually just by Indian cinema. And I'm sure that this will only grow. The other thing that our company does is the Indian Film Festival of Melbourne. And I'm very proud that that's the biggest festival of Indian cinema outside India. And the best thing about it is the cultural integration. I like to call it the cultural imperialism of India. And not only do Indian diaspora, but the whole subcontinent, people from other races, second-generation Indians with their Australian friends, they all come and celebrate. We have a flag hoisting at Federation Square, where everyone, right from our premier to ministers to local film lovers and Indians come. And that to us is very joyful, because that is celebrating India, celebrating our heritage and culture, and giving back to the country that we might not be living in, but we dearly love. So thank you for having us here, and thank you for being such great hosts. Thank you very much. Ms. Kavita Parmar from Spain. Hi. First of all, Namaskar Indore. Thank you so much, and thank you to MEA staff for inviting us here. This has been quite amazing. I haven't been back in India for 4 years. I did not realize how much I missed it. You could take a girl out of India, but you can't take India out of a girl, clearly. I was missing the smells, the sound, the sight, and even the crowds of India. I also wanted to thank you, Honorable Minister. As a young girl, what I wanted to be was like you. I wanted to be a politician. My parents thought it was not a good thing for a girl to be. I applied to London School of Economics, got through, but I wasn't allowed. So I left home, a very rebellious Army Air Force officer's daughter, and luckily fashion found me. I ended up going into the world of craft, learning how to handloom weave around all of Southeast Asia. I made clothes for pretty much everyone that you could imagine, Ralph Lauren, Calvin Klein, all the big brands, making production in India, China, all over, and very quickly realized how that was actually not helping the handloom industry at all. I moved to Spain. My husband works in AI and machine learning. He went to MIT, and I got very fascinated with technology. I'm not a tech girl. That's not my background. I write. I'm an arts and craft girl.
but technology fascinated me, and I saw it as an opportunity in which I could really do something for the handloom weavers that I loved. So we started a project called the IOU project, where we wanted to give traceability and technology back to the weavers. Every single piece carried a code. You could scan it and you could get to see who the weaver was who made your piece. Why? Everyone knows the designer, but no one knows the name of the weaver. And that's why no young people want to be weavers. Everybody wants to be a designer. So for us, it was really important to use technology for those that we had left behind. As you said about knowledge-based, India has the largest knowledge base of traditional textiles. And it is a very complex and a very exquisite knowledge, and we cannot lose it. Knowledge is not just learning how to code, which is wonderful and we should all learn, but at the same time, knowledge has to do with all this amazing indigenous craft. IOU project won a lot of awards around the world. We made a film, which you can go online and see. It's quite wonderful because it's about Mahatma Gandhi and the weavers of India, and how India is the largest sustainable luxury textile company in the world as a country. We have more than 34 lakh weavers just in South India itself. So I think it's really important that the second generation learns how to weave. So we've now started, as an entrepreneur, I was a woman on my own. I felt there was not enough mentoring around. So we've started a platform supported by the Majorcan government, where we organize one of the largest festivals of sustainable textiles of the world. We bring people from all over. We do mentoring, we do education, training and teaching people of the next generation how maybe going forward has something to do with taking a look behind. There is knowledge from our ancestors that should not be discarded, that is way more sustainable. I always tell the West, where I'm living, that don't come to India and tell us what is sustainability. Let us teach you, because that is how we grew up. That is how we learned. If I go to a weaver's workshop in Bhuj, that is the most sustainable place, no electricity, making the most beautiful products in the world, using locally grown cotton that uses no water. So that's the work I do, and I'm excited to be here and share with you, and would invite all of you to come to Mallorca if you can, to come and see it, and I'm hoping I can bring the festival to India where it belongs. Thank you. I will now like to invite Ms. Sajni Anaka Reddy and tell us in brief her story. Namaste, India. Thank you, Indore, for hosting us with your warm welcome, warm reception. Honorable Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman Garu, distinguished members of the panel, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen. It is with great honor and humility that I stand before you as a women entrepreneur of the Indian diaspora from Zambia. Many of you may not be knowing about Zambia. It is in Southern Africa. I hail from Hyderabad, Telangana, and I am a microbiology and genetics graduate. And I started my entrepreneur journey at a very young age. I got married at 20 years, and then I had to travel following my husband to Kenya, and from there to Uganda. And then we wanted to relocate to Zambia. After living in a couple of countries, then we thought of venturing into Southern Africa. According to our survey, back in 2004, there was immense potential in Zambia due to lack of skilled eye care professionals and relevant facilities. It presented us with the opportunity to administer affordable and professional eye care services to the people of Zambia. Many of you may not be familiar with my Karambhumi, Zambia. Let me just brief you. Zambia is a landlocked country which is very rich in minerals, semi-precious stones, the emeralds which we wear in the jewelry. 70% of them are coming from Zambia. It is famous for copper mining,
and it has got exploitable deposits of manganese, lithium, cobalt, nickel, and gold. And the population of Zambia is over 19 million. Zambia is one of the fastest growing economies in Africa. And it is one of the best travel destinations, boasting many wildlife sanctuaries and the legendary Victoria Falls, which is one of the 7 natural wonders of the world. The English is the main official language in Zambia, and 72 other ethnic languages. And glad to say that the local government allocate 10.5% of its annual budget towards people's health care. When it comes to women's rights, Zambia is much ahead compared to many other developed countries. Similar to India, Zambia showcases their diversity in every province. Zambia respects Indian culture and values. The Indian education system, they also trust the Indian medical system and doctors. In fact, there are many Zambian students pursuing their education in many universities in India. There is a saying in Sanskrit, Sarvendriyanam Nayanam Pradhanam. Eyes are important among all the senses. My husband being my side, a senior consultant optometrist, we co-founded Vision Care in 2005. As I begin my work in the eye care industry, I realized that my educational background did not offer me the technical edge that was required in this field, and hence I decided to study clinical optometry as my second degree. So as a practicing optometrist, I can be able to deliver the services effectively in addition to my very demanding administrative responsibilities. I'm very proud to say that Vision Care now is a group which has 8 companies under its umbrella with 32 branches in a couple of countries, and then in Democratic Republic of Congo also. So we are successfully delivering comprehensive eye care. Sorry about it. Eye care examinations and dispensing services with fully fledged optical lab to offer personalized prescriptions. Along the line, we have realized that we need to enhance our services and offerings to the needs of the patients with age-related eye problems and conditions that needed surgical interventions. So in 2008, we decided to introduce hospital services that offered wide range of surgeries. To be honest, it has not been a smooth endeavor, but satisfaction of being a part of something very big than myself was worth the effort. Post-COVID, we have decided to leverage the raw material supply chain from China to India due to the ease of doing businesses and single taxation approach. At the same time, we are contemplating to invest in medical tourism and lifestyle opportunities in India to enhance Make in India and offer the potential for exports and employment. As it is said in Sanskrit, Vasudhaiva Kutumbakam. This means the world is one family. We strongly believe that it is important to give back to the community which embraced us with open arms. More than 1% of Zambian population is suffering from avoidable blindness. As a corporate social responsibility, Vision Care conducts community outreach activities in many parts of rural Zambia to sensitize and treat those with no proper access to basic eye care and medical facilities. We have conducted free cataract surgeries to vulnerable people, creating awareness through our branch network. We offer free eye examinations to diagnose their eye problems. Accordingly, necessary eye treatments are sought. We are a strong team of over 150 trained Zambian nationals and as well as 30 Indian nationals
qualified eye care specialists, including doctors, optometrists, and technicians, whose expertise in this field has made a tremendous difference in the lives of Zambian community and revolutionized the eye care industry in Zambia. I would remiss if I did not take this opportunity to thank my husband for his invaluable support. We also found an opportunity, and happy to say that we are also the corporate owners of 80-roomed lakeside luxurious resort situated along the banks of Lake Kariba, which is the largest man-made lake in the world, located in Siawonga, Zambia. Savi Beach Resorts employs about 70 service-friendly work staff and skilled Indian management staff. And as an Indian woman, by nature, is extremely resilient, innovative, spiritual, and industrious, with a strong sense of duty. Right. And I find that to be especially true with the women of Indian diaspora in Zambia. Not only are they committed to community service through many avenues, especially to build the image of India. Right. In fact, I'm sure Madam Finance Minister will be very, very happy to hear what she mentioned, that ease of doing business that you've been talking about has been helping the entrepreneurs in different parts of the world. Thank you very much for telling us what you do. And I will now like to invite the next speaker, Ms. Maria Siddiqa Ashraf, Director of Conterfield International School from Tajikistan. Good afternoon, Honorable Finance Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, and distinguished guests. It is my great privilege to be a speaker for this session, harnessing the potential of women diaspora entrepreneurs towards an inclusive approach to nation building. I feel truly honored and humbled to have been given this opportunity to share my thoughts in front of this gathering of distinguished guests. It would sound impressive if I would begin by saying that I had been nurturing this passion and dream since a long time. To be honest, I had no plans to own a business or to start. It was my circumstances that moved me to strike out on my own. I would like to quote American talk show host, the famous Oprah. She said, "Challenges are gifts that force us to search for the new center of gravity. Do not fight them, just find a new way to stand." And I did find a new way to stand. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Maria Ashraf, and I'm an Indian entrepreneur who has built from ground up and organically nurtured the Conterfield International School in Dushanbe, Tajikistan. Just for your information, Tajikistan is a small country in Central Asia near Uzbekistan. Coming back to the challenge that brought out the entrepreneur in me, well, let me begin from the beginning. I traced my roots to Bahraich in Uttar Pradesh and learned my high degree in the area of education from the University of Awadh. As my father was in army, I have lived in many parts of India. My marriage to an NRI took me to shores abroad. As motherhood came calling, there was unbridled joy. The arrival of my firstborn son filled me the love I never knew resided within me. To every mother, their child is a special, and mine is very special. He's a special child with a lot of difficulties. Because he was with me and we as a family, we were so happy with him that he didn't realize that he is a special child. So when he became 4 years old, I was looking for a kindergarten for him, play school. And I took him to a play school, and he refused to go to that play school because he thought he's a normal child. And then
व्हाट आई थॉट, मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो उसके लिए सोचना था कि अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया उस स्कूल को जाना, और जिस कंट्री में मैं थी वहाँ पे मिक्स स्कूल नहीं था कि स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे एक साथ पढ़ रहे हो, तो मेरे बच्चे ने तो स्पेशल स्कूल में जाना रिफ्यूज़ कर दिया। तो मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे पास काफ़ी हेल्पर्स हैं, तो मैंने सोचा कि नेबरहुड से बच्चों को बुला के घर में ले आऊँगी और उनको पढ़ाऊँगी, और साथ में मेरा बच्चा जो है वो भी उनके साथ पढ़ेगा और खेलेगा। मुझे नहीं पता था कि ये जो मेरी छोटी सी बिगनिंग है ये एक बड़ा स्कूल का शेप ले लेगी। वो बच्चे जो नेबरहुड में थे, मेरे यहाँ आते थे, उन्होंने कहा ठीक है प्ले स्कूल फिनिश हो गया, अब हमारे बच्चे ग्रेड 1 में जाएंगे, लेकिन हम बहुत हैप्पी हैं आपके किंडरगार्टन से, तो आप स्कूल क्यों नहीं खोल लेती। तो फिर विद हेल्प ऑफ माय हस्बैंड मैंने जो है एक छोटा सा स्कूल खोला टिल ग्रेड 1 और 2। फिर वो बच्चे जब ग्रेड 2 के 3 में आए तो पेरेंट्स ने कहा हम दूसरे स्कूल में नहीं ले जाएंगे, इसी को एक्सपैंड कीजिए। तो अब हमारा स्कूल ये एक्सपैंड करते करते 12th ग्रेड तक हो गया है। मेरा स्कूल दूसरे स्कूल से क्यों डिफरेंट है, वो इस वजह से क्योंकि मेरे स्कूल में सिर्फ मेरा बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड पहले था, फिर एक पेरेंट ने अपना बच्चा मेरे स्कूल में भेजा जिन्होंने पहले से नहीं मुझे बताया कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है, वो ADHD उसको प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा एक्टिव है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। तो हम लोगों ने सोचा बच्चे तो एक्टिव होते ही हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे रियलाइज़ किया इन अ वीक और 2 कि इस बच्चा सिर्फ एक्टिव नहीं है, इसको और भी कुछ हेल्प चाहिए। अब मैं तो माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे के लिए स्कूल खोल दिया, तो मैं किसी के दूसरे बच्चे को कैसे कह दूंगी आप दूसरे स्कूल ले जाइए। तो मैंने क्या किया, अपने टीचर से बात की और मैंने कहा कि क्या हम इस बच्चे को, क्योंकि हमारे टीचर स्किल्ड नहीं थे, तो हमने कहा अगर हम अपना 100% डालें इसमें और इस बच्चे को एक चैलेंज की तरह लें और इस बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाएं। तो सबने कहा रेडी, वी आर रेडी। तो हम लोगों ने उस बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया, मतलब पहले से ही एडमिशन था, उसे हटाया नहीं। फिर अब चैलेंज एक था कि नॉर्मल बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि ये तो बच्चा बहुत एक्टिव है, कभी कभी जो है स्कूल में भागना ये सब शुरू कर देता है, क्लास में एकदम से खड़ा हो जाता है, उसका क्या करेंगे। तो हमने एक असिस्टेंट टीचर क्लास में रख ली जो उसकी टेक केयर करती थी उस बच्चे की, और वो धीरे धीरे बच्चा जो है मंथ में नहीं डेज में वो चेंज होने लग गया, क्योंकि उससे पहले उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। अब क्योंकि वो बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ रह रहा था, तो उस बच्चे को बर्थडे पार्टीज में इनविटेशन मिलने लग गए, उस बच्चे के साथ लोग फ्रेंडशिप करने लग गए, और वो धीरे धीरे बच्चा चेंज हो गया। और उसकी मदर ने फिर ट्रांसफ़र नहीं लिया किसी और कंट्री में, क्योंकि वो चाहती हैं टिल ग्रेड 12 वो बच्चा यहीं रहे और पढ़े, क्योंकि उन्होंने चेंज देखा उस बच्चे में कितना है। What a wonderful story. And I would like to go to Honorable Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman for this very quickly. Doesn't it remind you of what Honorable Prime Minister had told each one of us when pandemic came, that turned this crisis into an opportunity, something that she very nicely could do? Absolutely. Yeah. This is a classic case of how you see an opportunity and make it easy for yourself, but eventually you see that there's a larger purpose that you can serve. And that's where it's commendable, the work that you have done, and immensely appreciation worthy. We'll now like to invite Ms. Devki Khimji, Managing Director of Al Turki Al Tasneem Groups, who's come from Oman, to briefly tell us what her journey has been like, what were her struggles. Good afternoon. Can you hear me? Yeah. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for having me. It's a huge honor and privilege to be here. I know it's lunchtime, but give me 6 minutes of your time, and if the men here have daughters that are, going to be entrepreneurs or want to be, or some of the women here, I think you'll like to hear my story, which I believe I'd like to inspire you all with it. My name is Devki Khimji. I'm the Managing Director of Al Tasneem Group of Companies. It's a construction company and a mining company.
30,000 Indian employees' lives depends on what I do every day. I wake up every morning with the conviction to do well because those many lives depends on what I do, right? I'd like to tell you that this journey was not easy. India and in the rest of the world, a lot of work has been done with women education and equal opportunity for jobs. But female entrepreneurship, there's a lot of work to be done. I think it's just begun. Female entrepreneurship has just begun, right? There are lots of challenges. We know about those, investment, support from institutions, family support. But the biggest challenge we face today is courage and confidence. Our belief system is pivoted with fear and lack of confidence because of centuries of negative comments and lack of a robust support system, right? I'd like to share my story so that, I can inspire the lovely women here or the fathers of daughters that want to start their businesses on how I started. So when I came out of college, I was exploring career opportunities, and I asked my father, can I come to Oman and be part of your construction company? He refused that opportunity because he said that construction is a man's world, and Oman, being a Middle Eastern country, is, female employees are not there. Forget about female leaders. That was 25 years ago, and look how far we've come. I decided that I wasn't going to give up. This comment from my father drove me, and I wanted to start my own business. So I decided, I was interested in fitness, so I decided that I was going to make a business plan, and I made a robust business plan. I was confident of my idea, and I spent a long time trying to answer every single question an investor would want. Of course, I went to my father and I asked him for money, showed him the business plan. He refused and said that it was too risky for him. Of course, he didn't say anything much, but encouraged me that if, of course, I was very determined. He said, he encouraged me to go and get it from other financiers. But it was clear that he wasn't going to give me a personal guarantee. I worked 1.5 years with different institutes in India to get a loan. I was refused that for 1.5 years, not because my business plan wasn't good, but because, what if I get married? The loan officers would say, this is too risky. What if you get married and your husband doesn't allow you? But I wasn't going to give up because I was confident of my business plan and my idea. So I went and I was driving one day and I saw this billboard with IDBI promoting loans for women. I got hold of a branch manager. He was very excited with my idea and he wanted to support me but didn't have a fitness product. So he took me to the managing director of IDBI, Mr. Guneet Chadda at the time, and I prepared for hours. I was, waiting for that meeting, so thinking that he's going to ask me all these questions. And he asked me only one question. Why should I give a 22-year-old a loan that has no experience, and her father, even though he has the ability to fund her, doesn't want to do so? My answer was simple. I was confident of my capability and my plan, and with my father not funding me, I was even more determined to be successful.
he smiled, he looked at that bank manager and said, I don't know why, but this young lady has convinced me. He signed the loan approval there and then in the meeting, and off I went. I paid back the 3-year loan in 6 months. I got funded by NSDC, Skill India, after Skill India mission by Honorable Prime Minister Narendra Modi in 2015. I have fitness academies. I went on to IT. Then I started India Circus and sold it to Godrej. And finally, of course, after seeing all of this, my father was so proud, he invited me to Oman to run his construction company. That's a very, very inspiring story. And Honorable Finance Minister, if would like to say something on this, because access to finance is a very, very big concern here in India. Also, you've come out with a number of policies to ensure all entrepreneurs, not just women entrepreneurs, get the access to finance. How better the scenario is today, ma'am? I was just listening to the story and I was telling myself as to what am I hearing, and of course all of us are familiar with this kind of a story, but here's the question which links me to this experience and making it more relevant for all of us to be seated together talking into each other's experiences. You know, this is exactly the kind of problem which every woman, irrespective of the background she comes from or irrespective of the kind of business she wants to do, faces. Now here was somebody whose father could have given her the assistance. Probably he was also drawing that, spirit in her to fight it out and prove herself, whatever be it. But here was a family of father, mother who could have supported. There are immense number of women whose parents can't support, who do not have the wherewithal to support. Even they have an aspiration. Even they have a dream. And as much as our friend here, these women can also prove themselves and be successful. And this is where I do take this opportunity to say, I remember when PM Mudra scheme was launched. It is a scheme through which women who are doing businesses, men also, but both women and men, who cannot give any security or pledge any asset or put any, guarantor behind to come forward to support her or him, who wanted to do a business, who wanted the banks to give them working kind of capital or some loan so that they can do their business forward. Otherwise in India, in majority of the rural areas where people know one another by their face, less in urban areas, but wherever, the middlemen were giving money at very high interest rate for businesses to do, and these kind of small businesses can't even afford it, but they had no other go. And I know from my personal experience that when I was living in a town, small town, vegetable vendors in that place, which is actually very rich and green and very fertile area, vegetable vendors would go every morning to a middleman and say, today I need to buy vegetables for around 500 rupees, sell it through the day, and in the evening I'll pay you back. The system was well entrenched. So for the 500 rupees, he would already cut some money and then only give them. If I were to say it in 100 rupees, so you'll be able to calculate the percentage. So 100 rupee worth of vegetables I want to buy and sell and come back in the evening to pay you back, he would give you only 90 rupees in hand. So the vegetable vendor will get only 90 rupees, although his borrowing is 100 rupees, meaning 10 rupees is already cut. 90 rupees he'll go to the market, buy wholesale market, he buy the vegetables, come sell, and in the evening he go and he'll pay back 100 rupees. So every day for 100 rupees borrowed, he would pay 10 rupees. If this is calculated, what will be the annual rate of interest, you can imagine. So that is how usurious this kind of middleman's business was. So when Prime Minister Modi
launched PM Mudra scheme. It was aimed at helping street vendors, small fellows who are going on a cart and selling vegetables, fruits, flowers, or some kind of knickknacks for the children or for the women in the house. They didn't have huge capital. They didn't have a moneylender who can give them without interest or without security. They knew them, so they would give it. But through the public sector banks, the Prime Minister made a statement. You don't need to give any security. The Prime Minister is the security for this. And then extended the Prime Minister Mudra scheme, wherein I'm glad to say more than 50% are going to women small entrepreneurs. 70% now, I'm glad to be corrected. So then, these small street vendors, small merchants, who did not have to fall prey to the middlemen, are now getting, without security, loans from the bank so that they can do the business. In between, there was this thing about, oh, these mudra loans are becoming non-performing assets, meaning people are not returning the money in time, nor are they servicing the loan in time, and so on. No, the data shows that the NPAs are the minimum, less than 5%. So people are absolutely doing their business with this kind of help and servicing their loans. So that help which is so needed, in which they can't bring in securities, which they don't have guarantors to give. Indian government, because it has kept its ears to the ground, has understood this need and fulfilled this requirement for small businesses to thrive with bank support. Thank you. Ma'am, with your kind permission, could we also take some questions from the audience? Just a few questions. Kindly raise your hands. Two requests, keep the question very, very short, and please identify yourself first. Okay, the gentleman here. Yes, yes. Hello. Yeah, kudos to all the women sitting there. I think a round of applause for all of you. And quickly, I would just would like to thank Honorable Finance Minister for bringing all the data. And also, ma'am, as you said, India could be China +1 or EU +1 under your leadership. We would look forward to people saying we could be India +1 at a later date. Thank you very much. My question is something related to the global INR trade that India had opened with Russia and everybody else. I am Kishore Reddy, the president of the Sri Lanka India Society and the vice chair of the Indian CEO Forum. And I thought this would be a great opportunity to get your views. Because in terms of Russia, of course, there is excess of rupees that they would purchase from us. So we have balance of trade in favor of Russia. Okay. And we could use it. How could we use in terms of Sri Lanka? Because there would be less money coming in. How can the women set up something here which could actually Thank you. be Let's take one more question. The gentleman here in the second row. Yes, sir. Can you have the mic, please? This 180 or whatever number of days has to be relaxed for people who are held up in India during the COVID period. That's the only request and special appeal from the NRIs. Thank you very much. So this is Rahul from Shekunj. My Excuse me, please ask questions related to the session. This is not a session where you can ask questions on any topic. There is a theme, there is a topic, and please ask your questions related to the topic, and please be brief. I'm sorry for interruption, but this was needed. My question is to Dr. Poonam Gupta. You have already supported in the time of COVID, and you have allotted some concentrator, right? I just wanted to know, as a woman entrepreneur, you are doing a lot as a CSR activist. What is your plan for, as a woman activist, what is your plan for the next CSR activities in India? Do you have something?
Yes. Thank you very much. Thank you for the question. I'm always working on multiple things, especially in women education and entrepreneurship. So, as I told you, I'm the chair for FICCI, India UK Manufacturing and Trading Council. Currently, we are looking at multiple projects across India where products can be made in India with women and exported all over the world. And these products are not necessarily in the traditional women industries. We are looking at IT, we are looking at robotics, and I'm working with multiple organizations to see where all we can harness the entrepreneurship in India and connect our diaspora across the world with them so we can actually do much more business in India internationally. Thank you. You also had mentioned in your opening remarks, it's an aspirational India looking at participation in the world, and our aim should be to be engine of growth for the rest of the world. You heard these 6 wonderful women telling us their stories. There used to be a time when India used to give the world engineers, doctors, but now it seems India is giving the world entrepreneurs. So what kind of role can they play for nation building? How can they give it back to the society from where they went and became the leaders? Well, that's an area which is very wide. Certainly each one of them can contribute from their experience abroad as to what can be done in India, which can again have an audience or a market elsewhere. That is one simple abstract way in which I can put it, but in concrete action-oriented ways, they can always be joint ventures. They can always be mutually assisting. Some can be technological assistance, which we can provide, or financial assistance in terms of equity capital, which can come in from investors abroad, which are Indian diaspora investors. Or you can always look at that district to which you belong and come and support the program of the government there for promotion of one of those products. The one district, one product is something which I purposely put before you. After all, somewhere you will trace your origin to one of the districts in India. So you may want to come and see how that particular product can find market in the place where you live. Simple as that. Or even you set up production centers here and find markets elsewhere. So there are ever so many opportunities for that kind of an entrepreneurial collaboration between Indian diaspora and India. Any questions that our guests here who are present today on the stage have for Honorable Finance Minister? Anything that you want the country to do so that you can be the real brand ambassador? Because now you all have a huge responsibility. Let's start with you. Yes. So I do believe that as a country, as the world, we're doing a lot for, as we said, institutional loans or equal opportunity. I think there's a lot to be done as far as confidence and courage that women need to have. We all, including myself, comes from what I call a traditionally progressive family, right? It sounds like I'm putting 2 contradictory words together, but that's what I mean. The choice of career, lawyers are too argumentative, doctors get called in, it's got to be family worthy. These are things that all women hear all the time. If these kind of things are ingrained, we lose that confidence and courage. So as a country and as parents, as women, we should celebrate stories, success stories, because courage is contagious, right? And hope has a life of its own. Thank you. And I remember a couple of days back only, Ms. Nirmala Sitharaman was speaking to a young girl in Kota who asked her specifically about the ups and downs she faces on a regular basis. And it was a very beautiful message that ma'am gave to her. Would you like to say that and, maybe inspire those who are listening to you right now? Not so much for the message that I gave. This was one young girl, maybe in 11th class or 12th, as you would call 11th grade or 12th grade, and trying to enter into medical education.
it was, I mean, I felt some, you know, something tugging at my heart when I saw her speak. She had tears in her eyes. But she was so expressive to say, look, there are just too many ups and downs. I'm preparing to become a doctor, enter into a medical college. But it's so challenging. Some days are so bad, some days are so good. And it was like everybody in the audience, similarly placed, mostly girls who are trying to get into engineering or medicine. All of them were hesitant to ask, but she dared to say, look, this much of ups and downs, it's sometimes disorienting. I feel very down sometimes. So all that I could tell her was, it's first of all supremely courageous of her to stand up and ask this question while the rest of them didn't. And the fact that she stood up and asked itself says that she's identified the problem, that there are challenges, there are ups and downs, not every day is the same thing. So all that I could tell her was, you've identified the problem, that itself is half the bridge crossed, and I'm sure with the kind of confidence with which you're standing up and speaking here, you'll be able to do the rest. And the one thing which was so personal to me, because it really touched my heart, so I said if I were close to you, I would have come and given you a tight hug, because it's such a, you know, live, standing up and speaking and saying, look, it's not easy, it's so trying, it is so hard sometimes, so much of ups and downs for a 16, 17-year-old girl. So I said, don't worry. I mean, that was the conversation. But I thought it was so evocative of how every teenager feels, because the challenges are so much. Parents' expectations are so much. Investment in that education is so much. They get burdened within 16th year to think, can I make it? Will I fulfill the dreams of my parents? Actually, it is the fulfillment of their own dreams which they have to look at. But of course, the education system being what it is, parents' expectation being what it is, we all put it on the children saying, no, you should become a doctor, you should become an engineer, otherwise you don't have a bright future. But look at the women here. They've all had beautifully designed career for themselves. I wish we invest in our children to tell them, do what you feel like, do that which you dream, and we are with you. We'll give you the confidence. You'll make it big, don't worry. That's what I think we should do to our children. Beautiful. Closing comments, yes, Kavita. Fantastic advice, I think, for anyone. If you do what you love, the world will be a better place. But I also think as women entrepreneurs, what we bring, obviously men and women are not the same, but what is beautiful about women is we bring a nurturing culture into society. What you just said, I would go hug someone, the way we care for human beings. And I think the world needs nurturing right now. We need to build a 100-year business plan and not a 3-year business plan. We need to think long-term, and that's what we women bring to the table. But thank you, yes. Thank you. It's only a word of encouragement, I think, that is required. The confidence, you know, that a person really needs whenever there are ups and downs. But that was a beautiful message, and that's the reason why I wanted to speak about it today, because the women who are sitting with you, ma'am, today here on the stage, they had that courage, but life wasn't really easy for them. They were very, very young, most of them, who went abroad, left their own homeland, but today they are back here as the entrepreneurs. Thank you very much, all of you. With this, we would like to conclude this session. It was the last plenary session of this event. Lunch follows, and of course, there is a big event after that as well. Thank you very much, all of you. गुयाना के राष्ट्रपति
डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका।
और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. Our digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bharatiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को
सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर
आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंगें होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है
वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है, वे वाकई बहुत उपयोगी हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिससे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि सड़क के दोनों तरफ लोग बेसब्री से
इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की। ये आप तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर किस तरह से खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री का जो रोड शो है, अब तक का सबसे लंबा रोड शो, करीब करीब 50 से 51 किलोमीटर का रोड शो, वो शुरू हो चुका है और उसका इंतजार जो है लोग सड़कों के किनारे कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखिए अशोक जी, जो लेकिन रफ्तार से प्रधानमंत्री का काफिला दिखाई पड़ता था, आप उससे क्या भारत की विकास की रफ्तार को जोड़ते हुए देख रहे हैं? वो रफ्तार कुछ कहती है? देखिए, विकास की रफ्तार तो आज देखिए, आज एक इंपॉर्टेंट डे है, G20 के बारे में आपने हमने अभी खबर भी दी, तो आप देखिए किस तरह से भारत की वैश्विक रूप से किस तरह से प्रतिष्ठा जो है, किस तरह से भारत की चमक दमक जो है दुनिया में बढ़ रही है। तो वो रफ्तार तो थी, लेकिन अभी आप देखेंगे वो रफ्तार इसलिए थी क्योंकि ये काफिला शुरू हुआ है, ये रोड शो शुरू हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच आएंगे तो वो रफ्तार नहीं रह पाएगी, क्योंकि तब जो है प्रधानमंत्री की जो एक कनेक्ट, एक पूरा लोगों के साथ मिलने का, लोगों के साथ कनेक्ट करने की जो भाव होती है, उसके कारण आप देखिएगा जगह जगह प्रधानमंत्री लोगों को हाथ हिला के अभिवादन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, क्योंकि ये रोड शो बहुत लंबा है, करीब करीब 51 किलोमीटर का है और 14 विधानसभाओं को कवर करेगा। आर्यन, ये इंपॉर्टेंट बात है, 14 विधानसभाएं कवर करेगा, जिसमें से 13 विधानसभाएं जो है वो दरअसल अहमदाबाद की हैं, एक विधानसभा गांधीनगर की है, दक्षिण गांधीनगर की। तो वहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे और प्रधानमंत्री अभी जो है 2 दिन तक गुजरात में रहेंगे और लोगों से कनेक्ट करने का जो एक मीडियम है, एक माध्यम है रोड शो के जरिए लोगों से मिलने का, लोगों से कनेक्ट करने का, ये जो है उसका एक जो बड़ा भव्य नजारा जो है वो अब से अगले कुछ घंटों तक हमें देखने को मिलेगा। अशोक जी, अक्सर हम देखते हैं रैलियां होती हैं, एक जगह होती है, निश्चित जगह होती है, वहां पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन 50-52 किलोमीटर, ये आप देखिए लोगों ने किस तरह से स्वागत करने के लिए रंगोली बनाई है। ये गुजरात की एक परंपरा है। आप देखते हैं नवरात्रों में जगह जगह ऐसे होता है। तो यहाँ पर अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी पहुंचेंगे, तो लोगों ने रंगोली भी बना रखी है, लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, प्रधानमंत्री के कटआउट लगे हैं और लोग जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 50 से 52 किलोमीटर की दूरी और सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों का हुजूम ये दिखाता है कि जो स्वीकारता है, जिस प्रकार से लोग प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए सड़कों के दोनों ओर खड़े हुए हैं, ये उस प्यार को दर्शाता है जो प्रधानमंत्री को बीते इतने वर्षों में, इतने दशकों में लगातार गुजरात से मिलता रहा। और शायद इसीलिए वो अपने आप को गुजरात के बेटे के तौर पर लगातार कहते हैं और वो जुड़ाव लोगों के साथ हमेशा उस बात को महसूस करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए। शैलेंद्र, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लोगों का इंतजार, और कितनी देर में अब खत्म होगा प्रधानमंत्री के इस रोड शो की शुरुआत को लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए, अब ज्यादा देर नहीं है जब हम प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखेंगे। और जैसा कि अशोक बता भी रहे थे कि अब तक का सबसे बड़ा रोड शो है, तकरीबन 51 किलोमीटर लंबा है, जो अहमदाबाद के अलग अलग विधानसभाओं से गुजरेगा। गांधीनगर की एक विधानसभा है, 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरेगा और कई जगह पर माल्यार्पण का कार्यक्रम भी रखा गया है। जो प्रतिमा है सरदार पटेल की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, इस पूरे रास्ते में तमाम महापुरुषों की प्रतिमा भी बनेगी। उसमें कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी तक के एक तरह से कह सकते हैं, हमने पहले चरण में देखा था कि सूरत में एक भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला था पहले चरण में, जब चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले, और उससे भी ये बड़ा रोड शो है और अभी तक का ये सबसे बड़ा रोड शो, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी विधानसभा भी आती है, वहां से रोड शो गुजरेगा। तो निश्चित तौर पर जो आप जिक्र कर रहे थे, जो हम तस्वीरों में देखते हैं इस तरह के जो रोड शो होते हैं, किस तरह से कनेक्ट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमने देखा एक तस्वीर में किस तरह से लोग परिवार के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से दिखाने के लिए। और ये दिखाता है कि गुजरात में, खासतौर पर अहमदाबाद में, सूरत में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता है, और वो जब रोड शो, इस तरह के रोड शो होते हैं, तब उससे झलकती है। और आज का रोड शो कई मायनों में इसलिए खास होने वाला है क्योंकि चुनाव के इतिहास में कभी इतना बड़ा रोड शो किसी नेता द्वारा नहीं किया गया है। और ऐसे में इतना बड़ा रोड शो जब सड़कों के दोनों किनारे हम देख रहे हैं कि अभी से जो लोग हैं दूसरे छोर तक वो सड़कों तक इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर वैश्विक नेता
कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। गुजरात की धरती पर जब अहमदाबाद में रोड शो के लिए निकलने वाले हैं तो निश्चित तौर पर सभी को इंतजार है जब वो अपने प्रिय नेता को बहुत नजदीक से देख पाएंगे, उनका अभिवादन कर पाएंगे, उनका अभिनंदन कर पाएंगे और उनसे अगर मौका मिला तो कुछ क्षण उनको बहुत नजदीक से देख पाएंगे। तो निश्चित तौर पर सभी को इंतजार है और बीजेपी के लिए आज का एक दिन एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब गुजरात के चुनावी राजनीति के इतिहास में हम कहें कि सबसे बड़े रोड शो का दिन है आज अहमदाबाद में, जो 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं से गुजरेगा। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहें कि बहुत उत्साह का माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में, और हम छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं जो अपने परिवार के साथ आए हैं या फिर अपने घर के पास खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए आ रहे हैं। शैलेंद्र, आप रहिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव भी मेरे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद। अशोक जी, आप भी लगातार अभी गुजरात का दौरा करते रहे, आपने तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों को भी किया है, जनता से संवाद किया, किस तरीके का एक माहौल इस वक्त है, क्योंकि आज पहले दौर की वोटिंग है और दूसरे के लिए इतना बड़ा रोड शो, गुजरात इस वक्त राजनीति के लिहाज से कहां पे खड़ा है और कैसे एक नई करवट को लेकर आगे बढ़ने के लिए दिखाई पड़ रहा है? देखिए अरंग, 27 साल से बीजेपी का वहां शासन है और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो 2001 से लेकर 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अब तक सबसे लंबे समय तक गुजरात की सेवा करने का, गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने का जो सौभाग्य है वो नरेंद्र मोदी को मिला और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो उनका सफर जो गांधीनगर से शुरू होकर के सीधा दिल्ली तक आया, उस सफर के बीच में जो है, उस सफर में गुजरात की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये बात सब लोग समझते हैं। देखिए, ये जो चुनाव है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनाव में पहली बार त्रिकोणीय चुनावी लड़ाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इस बार अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर, ये आप देखिए प्रधानमंत्री के कारों का काफिला जो है अब और ये बात मैं आनंद आपको बताऊं, आप ये देख रहे हैं, ये अंडर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये गुजरात के अंडर ब्रिज के से इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद में, और ये अंडर ब्रिज जो है मैं आपको बताऊं आज आपको दिल्ली में दिखते हैं। मैंने आज के 20 साल पहले जब मैं रिपोर्टिंग करता था, मैंने अहमदाबाद में इस तरह के अंडर ब्रिज देखे। तो अहमदाबाद के डेवलपमेंट की आप देखिए कि 20 साल पहले वहां इस तरह के कई अंडर ब्रिज बने थे जिससे लोगों को ट्रैफिक में तकलीफ ना हो। और यह प्रधानमंत्री का देखिए काफिला जो है ये आ रहा, और ये आप देखिए गाड़ी किस तरह से फूलों से सजी हुई है। जो एक कार दिख रही है, अभी हम प्रधानमंत्री जो है वहां नजर आएंगे, देखिए गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं दिख रहा है, और पीछे एक और जो है गाड़ी है जो फूलों से सजी हुई है, दोनों तरफ लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री को अभी लोग देखना चाहते हैं। तो आनंद, जो आप कह रहे थे ना कि देखिए गुजरात बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से गुजरात मॉडल की बीजेपी लगातार बात करती है और इसीलिए जो है, और प्रधानमंत्री का एक शैली है, वो लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। आप भी कई बार प्रधानमंत्री का आपने विदेश दौरे कवर किया, आपको मालूम है जब वो विदेशों में भी जाते हैं तो भारतवंशियों के बीच मिलने के लिए वहां पर सड़कों के किनारे जो इस तरह से लोग खड़े हो जाते हैं, भारतवंशी खड़े हो जाते हैं, तो वो अपने रोड शो के माध्यम से उन लोगों का अभिवादन करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और गुजरात में इस वक्त सबसे बड़ा रोड शो करने का ये जो पूरा बीजेपी ने स्टार्ट, ये प्रधानमंत्री की पहली छवि आप देखिए, प्रधानमंत्री इस गाड़ी के काफिले में देखिए प्रधानमंत्री की पहली छवि इस वक्त जो रोड शो की, और इस तरह से आधिकारिक रूप से कह सकते हैं, आप ऑफिशियली कह सकते हैं, इस रोड शो की शुरुआत हुई। अब तक का सबसे बड़ा रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो एक इस वक्त बीजेपी की टोपी लगाए हुए और फूलों से सजे इस कार में, भगवा कलर की कार भी है, मतलब वो रंग भी अपने आप में अशोक देखिए वो भी अपने आप एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि बीजेपी हर वो एक कोशिश करती है जिससे वो एक जुड़ाव महसूस कर सके और अपनी जो बात रखने का तरीका है वो कर सके। और प्रधानमंत्री उसकी पूरी टीम को अगवाकारी करते नजर आते हैं। वो शायद जिस बात का जिक्र कर रहे थे, गाड़ी नजर आ रही, प्रधानमंत्री खुद उस ओपन जीप में वहां पे मौजूद है। जाहिर सी बात है सीधे तौर पे लोगों से वो कनेक्ट कर सके, मिल सके, संवाद कर सके और उनका अभिवादन सहर्ष स्वीकार कर सके। और ये 50-52 किलोमीटर के रोड शो की अब शुरुआत हो गई और ये अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा मेगा रोड शो होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कार्यशैली को जो लोग करीब से जानते हैं, जिसको आपने भी कई बार अशोक जी जिक्र किया है कि वो हमेशा बड़ा करने की बात करते हैं और उसमें विश्वास करते हो, शायद इतना बड़ा रोड शो करने का मादा भी उन जैसे ही राजनीतिक शख्सियत की काबिलियत है, शायद जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा रोड शो के लिए वो निकले हैं अब। जी हाँ, और आप ये देखिए अभी इससे पहले वो कलोल में एक छोटा रोड शो करके आ रहे हैं,
छोटा रोड शो उन्होंने अभी कलोल में किया था, वहां भी लोगों के साथ उन्होंने कनेक्ट करने के लिए रोड शो किया। और आपने अभी भगवा गाड़ी की बात की ना, तो ये नहीं भूलना चाहिए, गुजरात देश का पहला राज्य है जो पूरे भगवामय हो गया। ऐसा पहला राज्य है जिसने जो बीजेपी की इतनी बड़ा स्ट्रांग होल्ड बना और उसके बाद वहां से जो है बीजेपी का विस्तार हुआ। तो ये जो भगवा आप रंग देख रहे हैं, भगवा रंग की कार देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सिंबॉलिक है कि बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात को भगवामय कर दिया, एक बार फिर से गुजरात जो है वो भगवामय हो जाए, उसी की कड़ी के लिए, उसी की चीज को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रधानमंत्री का रोड शो है। और ये इस वक्त जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो नरोडा गांव से जो निकला है, ये वो विधानसभा सीट है जहां बीजेपी एक स्ट्रांग होल्ड है। और आनंद, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आज का जो सफर है, आज की जो रोड शो है, ये मणिनगर विधानसभा सीट से भी निकलेगा। मणिनगर अहमदाबाद की वो विधानसभा सीट है जहां से ये आप देखिए, ये है ताकत, बहुमंजिला इमारत। एग्जैक्टली ये अभी आपने ये सूरत में भी नजारा देखा था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। देखिए, सड़कों के किनारे आप लोग जमा हो जाते हैं, वो तो अलग बात है, लोग देखिए फूलों से प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बिल्डिंगों में, बाजारों में और जहां जहां आपको इमारतें दिखाई देंगी, उन इमारतों के ऊपर आपको लोग खड़े हुए दिखाएंगे। देखिए, आप नीचे आप भीड़ देखिए और आनंद ऊपर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जिन इमारतों तक नजर जाएगी, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्यार जो है, आप देखिए लोग कितने खुश हैं, चेहरे देखिए, आप देखिए, ये कई बार लोग इस तरह के आरोप लगा देते हैं, अरे भीड़ जुटा ली जाती है, लेकिन आप जो लोग खड़े हैं सड़कों के किनारे, जब आप जरा उनके आप चेहरे देखिए, चेहरों की अभिव्यक्ति देखिए, उनके चेहरों पर, फेस पर एक्सप्रेशन देखिए, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ अपना कनेक्ट महसूस करते हुए, उनको बस खबर लगनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि उनको गुजरात का बेटा माना जाता है और गुजरात का गौरव माना जाता है, गुजराती अस्मिता से जोड़कर गुजरात के लोग देखते हैं। इसीलिए जो है, जब लोगों को एक बार खबर लगती है बस नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके बाद लोग सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए उतर आते हैं। और बड़ी बात आरेंद्र ये भी है, मैं आपको ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के लोगों से इतना कनेक्ट है कि आज भी अगर वो किसी सड़क किनारे देखिएगा, सड़क के किनारे उनको कोई बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता दिख जाएगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसका नाम लेकर उसको बोले कि हाँ कैसे हो, परिवार में सब ठीक है। अभी वो जब गए थे गुजरात में प्रचार करने के लिए, तो सीधा गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस पहुंच गए और वहां जितने पुराने कार्यकर्ता थे उनके साथ बैठ के उन्होंने संवाद किया। और ऐसे कई कार्यकर्ता थे, ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको वो नाम से जानते थे, उनका नाम लेकर उनके परिवार का हालचाल पूछा। ये जो कनेक्ट है, इस कनेक्ट की जो तोड़ जो है विपक्ष के पास आज तक नहीं है। बिल्कुल, शायद इसीलिए ये एक महारत मानी जाती है, जिस प्रकार की जमीनी राजनीति करने वाले लोगों के साथ जुड़कर काम करने वाले और राजनीति को सेवा मारने की जो एक पूरी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री और उनकी टीम आगे बढ़ती है, और शायद इसीलिए इतना बड़ा जुड़ाव महसूस होता है। दुनिया में किसी भी मुल्क के सबसे बड़े हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों को हासिल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल करने वाले लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अपना गृह प्रदेश गुजरात, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से गुजरात को एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पे कहा जाता है, जिसका जिक्र अभी आप अशोक कर रहे थे कि किस तरह से पूरा भगवामय हो गया था, यानी सारी सीटें लोकसभा के लिहाज से अगर कहा जाए तो बीजेपी के हिस्से आई थी। अपने आप में ये बताता है किस तरह से वहां से लगातार गुजरात से जो एक कोशिश की बीजेपी ने, वो न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के अन्य राज्यों तक पहुंची और शायद इसीलिए लगातार स्वीकार्यता बढ़ती हुई, एक वैश्विक नेता के छवि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता बढ़ती हुई और हजारों की संख्या में लोग एक प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए दौड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी सहर्ष लोगों को स्वीकार रहे हैं। ये बहुमंजिला इमारतों की खिड़कियों में इंतजार करते हुए लोग, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ये इंतजार भले ही कितनी देर करना पड़े, हम डटे हुए हैं। आइए मोदी जी, एक बात और बहुत मैं आपको इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात बताऊं। देखिए, ये जो रोड शो का सिलसिला है, जो परंपरा है ना आरेंद्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो शुरुआत है राजनीतिक तौर पर, हालांकि वो राजनीतिक तौर पर अगर कहें तो कई यात्राओं से जुड़े रहे, चाहे वो कश्मीर की यात्रा हो जो जिसका नेतृत्व डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया था, तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष थे, या फिर रामरथ यात्रा जिसका नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया। तो ऐसी जो यात्राएं थी उनका नेतृत्व तो वो करते ही थे, लेकिन जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, उसके बाद 2005 की बात है आरेंद्र, 2005 के अंदर अहमदाबाद के अंदर जो लोकल बॉडी का चुनाव था, लोकल बॉडी का चुनाव वहां पर हुआ। और क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए एक चुनौती थी कि अहमदाबाद, लोग आज कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री होके, मुख्यमंत्री होके लोकल बॉडी के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, लेकिन उस वक्त अहमदाबाद की लोकल बॉडी में कांग्रेस का रूल था। लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2005 में पहली बार, ये आप भीड़ देखिए, आप ये भीड़ देखिए,
आपको अंदाजा होगा कि गुजरात की चुनावी जो हवा है वो किस तरह बह रही है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने विश्लेषण करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के साथ जो कनेक्ट है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन तस्वीरों को देखेंगे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का काफिला, और मैंने कहा था ना कि रफ्तार जो है उनकी गाड़ियों के काफिले की रफ्तार शुरुआत बहुत तेजी से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोगों की भीड़ ऐसी है, लोगों का हुजूम ऐसा है कि इसकी रफ्तार जो है अपने आप उनको धीमी करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री खुद भी जो है हर तरफ वो, ये उनकी कोशिश रहती है कि हर तरफ वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करे, किसी को भी ये महसूस ना हो कि वो आए और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनको देखने के लिए आए और उनको निराशा हाथ लगी। तो आनंद, जो मैं बता रहा था 2005 में उन्होंने तब अहमदाबाद के लोकल बॉडी के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने 2 रोड शो का आयोजन किया। वो मुख्यमंत्री होते हुए अहमदाबाद की सड़कों पर उन्होंने 2 रोड शो किए और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर कुल 128 सीटें थी, उनमें से 96 सीटें बीजेपी ने जीती। पहली बार बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो 2005 में उन्होंने अहमदाबाद से जो रोड शो का सिलसिला शुरू किया था, आज 2022 में आप देखिए उन्होंने ऐसे ही कितने करोड़ों करोड़ लोगों का दिल जो है इन रोड शो के जरिए जीता है, लोगों से कनेक्ट जो है अपना स्थापित किया है, और वो कनेक्ट लगातार बना रहता है। और वो जो है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की जीत का एक बड़ा कारण बनता है। वो भले ही विपक्ष जो है उसके लिए कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये कनेक्ट जो है इसका तोड़ विपक्ष में अभी तक किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं कि सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों का हुजूम, फूलों से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल स्वागत करते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रखे हैं और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ अपने चेहरे को घुमाते हैं, दोनों तरफ के लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं, दोनों हाथों से लोगों को अभिवादित करते नजर आते हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री हर उस एक व्यक्ति जो उनके इंतजार में यहां पे खड़ा हुआ था उस तक पर्सनल कनेक्ट कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ता है साफ तौर पे। और ये लगातार फूलों की जो वर्षा है ये भी दिखाती है कि एक आम व्यक्ति का प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार से समर्पण है, प्यार है, और उसकी अभिव्यक्ति फूलों की इस वर्षा में दिखाई पड़ती है। बहुमंजिला इमारतों पे लगातार हजारों लोग, देखिए कितने और महिलाएं, देखिए पूरे उस बालकनी में महिलाएं मोबाइल लेकर खड़ी थी, सिर्फ एक फोटो किस तरह से उनके काफिले की खींच ले, ये जो है नजारा। और आपको देखिए, आपको चारों तरफ जो है लोग दिखाई देंगे इस पूरे हमारे फ्रेम में। आप देखिए जहां तक आपको दिखाई देगा उस फ्रेम में आपको लोग दिखाई देंगे। देखिए महिलाएं भी पीछे आप देखिए चढ़े हुए हैं, जहां उनको जगह मिल रही, जहां थोड़ी सी ऊंचाई किसी को दिख रही है वो वहां खड़े हो जा रहे हैं। एक हाथ में लोगों के मोबाइल है, एक हाथ में वो अपने प्रिय नेता की तस्वीर उतार देना चाहते हैं, तो दूसरे हाथ जो है वो हिलाते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं ताकि उनकी नजर पड़ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं और प्रधानमंत्री को कई बार दोनों हाथों से दोनों तरफ इशारे करने पड़ते हैं। और साथ साथ जो है देखिए वो हर तरफ जो है लोगों को जो है हर तरफ से लोगों से जुड़ सके, लोगों को अपनी एक छवि उनकी जो है देख सकें, लोग प्रधानमंत्री उनके साथ जुड़ सकें, इस तरह से उनका प्रयास लगातार चलता रहता है। अशोक जी, लगभग 8 महीने पहले भी अहमदाबाद की सड़कों पर एक रोड शो हुआ था जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत के बाद में प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे, तो उस समय भी एक रोड शो था। लगभग 8 महीने के बाद में ये रोड शो, लेकिन ये आज तक का भारतीय राजनीति के लिहाज से कहा जा रहा सबसे बड़ा मेगा रोड शो है चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए। और यही अपने आप में बताता है किस प्रकार की एक बड़ी लकीर खींचने का मादा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शायद इसीलिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं अशोक जी की विपक्षियों के पास में कार्ड नहीं है, ये स्वीकारता कैसे हासिल होती है जब आप लगातार दशकों तक जमीन पे लोगों से जुड़ के काम करते रहते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए तमाम योजनाएं लागू करते हैं, तो जो बदलाव लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं शायद इसीलिए उस बदलाव का परिचालन ही है जो लोगों को स्वतः स्फूर्त तरीके से यहां तक खींच लाता है। और वो लोग निकलते हैं इस प्रकार से अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री का फूल के माध्यम से। वो ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं हर ओर, दोनों तरफ, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बहुमंजिला इमारतें भी हैं, तो लोग बालकनी में, छतों पे खड़े हुए हैं, महिलाएं, युवा, छोटे बच्चे, क्योंकि युवाओं का जिक्र आया तो बहुत से ऐसे युवा हैं इस बार लाखों की संख्या में जिन्होंने वो 20 साल पहले का गुजरात नहीं देखा है, लेकिन अब वो इस विकास को देख रहे हैं। लेकिन उस समय कि अपने परिजनों से मिलने का उनके अंदर एक ललक है कि हाँ क्या जिस बारे में जिक्र हो रहा है वो गुजरात कैसा था और कैसे बदला है गुजरात। बिल्कुल। और एक बात इस आर्यन आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस रोड शो के संदर्भ में जो जानकारी मुझे मिली है, इस रोड शो की योजना कल देर शाम को बनी थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
आप ऐसे रोड शो, क्योंकि अगर इस रोड शो में लोग नहीं जुटे, आप सोचिए चुनाव का टाइम हो, कोई नेता रोड शो करने निकले, जनसभा करे और वहां लोग ना जुटे तो कितनी किरकिरी होती है, पार्टी के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है और एक मैसेज जो है नैरेटिव क्या जाता है। इस रोड शो की ये आप महिलाओं को देखिए, वहां की बच्चियों को देखिए, उनके चेहरों पर खुशी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लेकर वो कितनी खुश दिख रही है, कैसे अपने हाथ हिला रही है, आप इनकी खुशी से समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो होना सबसे लंबा रोड शो, कल देर शाम को इसकी योजना बनी, मुश्किल से 12 से 14 घंटे का समय मिला होगा कि इस रोड शो के लिए तैयारी की जाए, लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा रोड शो और इतनी भयंकर भीड़, मैं इसको भयंकर शब्द कह रहा हूं, तो ये आप भीड़ देखिए कि इस भीड़, और वो भीड़ जो है साथ साथ चल रही है, वो ऐसा नहीं है कि लोग रुक गए कहीं, आप देखिए बहुत सारे लोग जो है इस काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं। तो इतने कम समय में इतने कम, या आप देखिए बच्चियां कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जो है खड़ी हैं, तो इतने कम समय में इस रोड शो की योजना बनती है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां जुट गए हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक और बात दिखाता है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आज दिल्ली में आ गए हैं, करीब करीब 8 साल से दिल्ली में हैं, लेकिन गुजरात के साथ, गुजरात के लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है, गुजरात के लोगों के मन में उनके लिए जो प्यार है, जो आदर है, उसका कोई मुकाबला, कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और लगभग अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 21 विधानसभा सीटें आती हैं अपने आप में, तो ये राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में बहुत सी विधानसभाओं को कवर करते हुए प्रधानमंत्री का ये पूरा रोड शो निकलेगा, इसके राजनीतिक मायने भी बहुत कुछ है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं से सीधे तौर पर ये रोड शो गुजरने वाला है, और अगर आप देखें तो तकरीबन 16 विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरेगा या उसके पास से गुजरेगा। तो उस लिहाज से देखें तो बहुत मायने हैं जब एक तरफ से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 विधानसभा की जनता के साथ कनेक्ट होंगे इस रोड शो के जरिए, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दोनों तरफ जब बहुमंजिला इमारतों पर हाथ हिलाते हुए लोग उत्साहित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, करीब से फोटो लेना चाहते हैं, और इस तरह की तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना कनेक्ट है, कितना गहरा जुड़ाव है गुजरात की जनता के साथ, अहमदाबाद की जनता के साथ। और यही वजह है कि पार्टी ने इतने बड़े रोड शो भारत के चुनावी इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़े रोड शो का आयोजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। हमें कह सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है। लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोग सड़क के किनारे इंतजार करते हुए, और इतने बड़े रोड शो से जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो ये दिखाती हैं कि कितना कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने गुजरात के लोगों के साथ है, अहमदाबाद के लोगों के साथ है, और साथ ही साथ कितनी गहरी है जड़ें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की, जिसने इतना बड़ा रोड शो का आयोजन किया है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है राजनीतिक लिहाज से कि दूसरा जो चरण है उसमें मध्य गुजरात, जिसमें अहमदाबाद और गांधीनगर की विधानसभा सीटें आती हैं, उत्तर गुजरात में विधानसभा जो चुनाव में मतदान जो होना है दूसरे चरण में, वो इसी मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में होना है, और वहां पर अब बीजेपी अपना सारा फोकस लगाए हुए है, सारा जोर लगाए हुए है। हम जानते हैं कि आज ही प्रधानमंत्री ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया है। अशोक इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि जो युवा है वो भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आए हैं कि किस तरह से 20-21 साल का जो युवा है वो इस बात को जानता भी नहीं है किन किन समस्याओं को हल किया गया है गुजरात में, कितनी चुनौतियों का सामना गुजरात की मां बहनों को करना पड़ता था। जहां तक पानी का सवाल है, आज घर घर पानी पहुंचा है, नर्मदा का पानी उन इलाकों में पहुंचा है जो एक तरह से देखें बहुत कम पानी वाले इलाके माने जाते थे। तो गुजरात की समस्याओं को एक एक कर जिस तरह से हल किया गया है। शैलेंद्र, जब आप माँ बहनों की बात करके आपने पानी का जिक्र किया तो यहाँ पर यह भी बड़ा एक
जो है ज़रूरी तथ्य है। सिर्फ पानी की बात नहीं है। जिस अहमदाबाद में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिनका रोड शो निकल रहा है, यहाँ पर जो माँ बहनें महिलाएं थी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का था। मतलब गुजरात सहित गुजरात के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में जो है ना, जो बूट लेकर होते थे, शराब के व्यापारी होते थे, या फिर जो अलग अलग तरह के जो माफिया होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया का राज होता था। और अहमदाबाद जैसे शहर में ये सूरज ढलने के बाद अहमदाबाद जैसे शहर में कई इलाके ऐसे थे जहां महिलाएं, बच्चियां नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज गुजरात में रात को आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे महिलाओं को आप स्कूटी पे रात 3 बजे अकेले अपने घर से निकलकर वो जाती हैं, वो आइसक्रीम खाती हैं और सुरक्षित वापस आती हैं। आज सुरक्षा का ये माहौल है गुजरात में। इसी अहमदाबाद में ये हालत थी कि वहां पर महिलाएं निकल नहीं सकती थी। और आप ये देखिए, छतों पर चढ़े हुए लोग छत पर चढ़कर किस तरह से हाथ हिला रहे हैं। जी शैलेंद्र। निश्चित तौर पर मैं उसी पर आ रहा था तो कि एक एक जो समस्याएं, जो चुनौतियां थी गुजरात में, उनको दूर करने का काम किया गया और गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पर इस तरह से आगे बढ़ाया गया। और हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि गुजरात आज सुरक्षा के लिहाज से ऐसे राज्य के तौर पर जाना जाता है जहां पर कोई फसाद नहीं होता, जहां पर एक भी दिन के लिए कर्फ्यू नहीं लगता और जहां पर सुरक्षा का यह माहौल है कि रात को 12 बजे, 2 बजे परिवार के साथ लोग टहलते हैं। न केवल शहरों में, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में कहीं भी आप चले जाएं और किसी भी परिवार से पूछे सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है, तो वो निश्चित तौर पर कहते हैं कि वो गुजरात में बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं और इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कितने बज रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कोई इस तरह की दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अब गुजरात ऐसा सुरक्षित राज्य है जहां पर कोई भी सपरिवार आसानी से बिना किसी चिंता के घूम सकता है रात 2 बजे भी। तो निश्चित तौर पर उसको एक बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर बीजेपी सामने रखती है जनता के कि देखिए आज का जो गुजरात है तो कितनी मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद लगातार उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में गुजरात को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिजली की बहुत बातें होती है। 2 योजनाएं, सुजलाम सुफलाम, जिसमें पानी पाइप के जरिए, नहरों के जरिए खेतों में, घरों में पहुंचाने का जो काम जो आगे बढ़ाया गया है, और दूसरा ज्योतिर्ग्राम योजना एक शुरू हुई थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक मिनट रुकिए। आप देखिए, गुजराती हो और गरबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप देखिए, लोगों का ये मैं बहुत एक परिवार है पूरा, जो जी पूरा परिवार है। देखिए पूरा बड़े छोटे सभी हैं। बिल्कुल, महिलाएं हैं, पुरुष और युवा हैं, बच्चे हैं। ये किस तरह से अपने घर में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप किसी रोड शो के, किसी प्रधानमंत्री या फिर किसी भी नेता के राजनीतिक कार्यक्रम को इस तरह से सेलिब्रेट परिवार में किया जाए, ये नज़ारा आप जो है शायद ही कोई देख पाएंगे, कहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जो कनेक्ट है गुजरात और नरेंद्र मोदी का कनेक्ट, ये जो सेलिब्रेशन है, घर घर सेलिब्रेशन है। ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री जब बने थे तो गुजरात में घर घर सेलिब्रेशन था। लोग, पूरे गुजरात के लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे और आज भी वो प्यार बना हुआ है और लोग घरों में गरबा डाल रहे हैं और नरेंद्र मोदी की इस रोड शो को सेलिब्रेट कर रही है। अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब ये यात्रा, जब देखिए प्रधानमंत्री की यात्रा जहां से निकल रही है, जहां पर जब हमारा कैमरा किसी भी व्यक्ति को जो इस यात्रा के आसपास मौजूद है, उस रोड शो में शामिल, उनके चेहरे आप सिर्फ देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपको वो चेहरे पर जो उत्साह, जो उमंग दिखाई देगी, जो प्यार, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। आप सिर्फ उनके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का बेटा, ये देखिए सड़कों पे लोग जिस तरह से आ रहे हैं, उनको हटाना पड़ रहा है। ये प्रधानमंत्री, देखिए कोई सड़क पर एक युवा जो है आया, उसको हटाया गया, प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ हाथ हिला के इशारा किया, बल्कि वो दंडवत करना चाहता था सड़क पे। लेकिन जाहिर सी बात है वो सुरक्षा के लिहाज से ये संभव नहीं है। लेकिन ये दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव किस प्रकार से है। अभी कुछ अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो प्रधानमंत्री इस बार के चुनाव में लगभग 50 से ज्यादा रैलियां करना उनका संभावित हो। 30 रैलियां वो आज तक लगभग कर चुके हैं और इस प्रकार के रोड शो की गिनती तो लगातार हम लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके से चीजें चल रही है। क्या वो एक 72 वर्ष की उम्र है उनकी और ये जो ऊर्जा है,
ये भी अपने आप में लोगों तक जोड़ने का एक बड़ा कारण दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में देखिए, वो कभी 24/7 काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में नजर आते हैं, वो थकते नजर नहीं आते। तस्वीर देखिए आरेंद्र, ये तस्वीर, ये पिक्चर ऑफ द डे है, ये पिक्चर ऑफ द डे है जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की तस्वीर है प्रधानमंत्री का काफिला और चारों तरफ लोगों का हुजूम। ये वो तस्वीर है जो गुजरात की राजनीतिक कहानी, इन चुनावों की कहानी जो है वो कह रही है। चुनाव नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन बहुत कुछ जो है, ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, और आनंद ये जो आपने अहमदाबाद का जिक्र किया, आपने खास करके अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 21 विधानसभा सीटों का आपने जिक्र किया। यहां पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर है, इन 21 में से 12 सीटें जो है बीजेपी की झोली में गई थी, और कांग्रेस भी यहां पर अपना गढ़ बचाकर रखती है। तो मध्य गुजरात का इलाका है जहां पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा, ये जो रोड शो है, ये कहीं ना कहीं अपने गढ़ को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, अब तक अहमदाबाद में एक भी रैली नहीं की। हालांकि अब तक वो 30 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं, लेकिन एक भी रैली उन्होंने अहमदाबाद में नहीं की है। और आज जो है ये जो रोड शो है, ये तमाम भरपाई जो है अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक बीजेपी के लिए जो प्रचार की जो भी खामियां थी एक तरह से, या जो कमियां थी, उन कमियों को आज ये रोड शो एक तरह से पूरा कर देगी। और ये यहां अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में ये रोड शो निर्णायक साबित होने वाला है। ये आप लिख के रखिएगा। 8 तारीख को जब इस पर हम बात करेंगे, तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम इस पर जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि पिक्चर ऑफ द डे, क्योंकि वो निश्चित तौर से हजारों की संख्या में लोगों का एक तरीके से उमड़ आना सड़कों पे स्वस्फूर्त तरीके से ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का कितना उत्साह है, आकर्षण है, स्वीकारता है, वो तस्वीरें में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। और शायद इसीलिए बीजेपी लगातार, खुद प्रधानमंत्री लगातार, या तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि अब तक क्या जो भी नंबर बीजेपी ने हासिल किए उससे ज्यादा अपने सारे आंकड़े को तोड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था कि नरेंद्र को आपने एक बार दिया था, भूपेंद्र के लिए रिकॉर्ड तोड़ दीजिए गुजरात, ये बात का जिक्र किया था। और नरेंद्र भूपेंद्र की जोड़ी के लिए वो लगातार वोट की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये 50 किलोमीटर से ज्यादा का जो सफर है, इसमें दोनों ओर उमड़े हुए हजारों की संख्या में लोग ये बताने के लिए काफी है किस प्रकार से एक उत्साहित बीजेपी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जनता का प्यार इसने अभी भी लगातार अपने प्रधानमंत्री के प्रति लगातार बना हुआ है, उनकी नीतियों से मिल रहे लाभ को लेकर लगातार वो स्थितियां, परिस्थितियां दिखाई पड़ रही। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। शैलेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर। निश्चित तौर से गुजरात में गुजरात मॉडल और गुजरात मॉडल पर देश का चुनाव होने का जिक्र हम लगातार बीते कई चुनाव से देखते रहे हैं, और अब जबकि गुजरात में चुनाव हो रहा है तो उसी गुजरात मॉडल के लगभग 2 दशक का जो सफर है, वो अपने आप में उससे ज्यादा का जो सफर, वो बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आया है इस पूरे गुजरात में। किस तरीके से लोग इसको अपने जीवन में बदलाव के तरीके से देखते हैं, खासतौर से युवा, महिलाएं? निश्चित तौर पर गुजरात में जो विकास हुआ है, या गुजरात में जो विकास का मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया गया है, हम देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में उस मॉडल को लागू करने की कोशिश हुई है। ड्रिप इरिगेशन उन इलाकों में जहां पर पानी कम होता है वहां बहुत लाभदायक होता है, और कच्छ में जिस तरह से ड्रिप इरिगेशन को एक उदाहरण के तौर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया, उससे जो किसानों को फायदा हुआ, अब हम देख रहे हैं कि उससे सीख लेते हुए, उस उदाहरण से समझते हुए देश के तमाम जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां पर पानी कम है, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है, और उससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। ज्योतिर्ग्राम योजना की मैं बात कर रहा था, जब 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बिजली के तार बिछाए गए थे इसी गुजरात में, और न केवल बिजली घर घर तक पहुंचे इसकी चिंता की गई थी, बल्कि किसान फीडर अलग हो और लोगों के घरों की बिजली अलग हो, उस पर बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ था। बिजली उत्पादन किस तरह से बढ़े, न केवल कोयला से बिजली उत्पादन बढ़े, बल्कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के जरिए बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सके, उस पर गुजरात में बहुत पहले काम शुरू हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों में उस पर तेजी से काम हो रहा है। और ये सफलता दिखाता है कि किस तरह से गुजरात में न केवल समस्याओं को हल किया गया है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए योजना बनाकर उस पर तेजी से आगे बढ़ा गया है। यहाँ पर आरेंद्र, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि दरअसल जो एक बड़ा बदलाव ये आया है कि योजनाओं को समय पर पूरा करना, जिससे कि पैसे की बचत हो, समय की बचत हो और विकास की रफ्तार तेज हो। गुजरात में हम बड़ी बड़ी परियोजनाओं में उसे पूरा होता हुआ देखते हैं, और आज हम देश भर में देख रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से
ये सरकार कहती है कि उसका उद्घाटन शिलान्यास भी किया जाता है और तय समय में उसका उद्घाटन भी किया जाता है और कई बार वो समय से पहले काम पूरा होता है। और इस तरह की जो एक पद्धति, कार्य पद्धति, जो गवर्नेंस मॉडल जो विकसित किया गया गुजरात में, हम आज देख रहे हैं कि पूरे देश में उसे लागू किया जा रहा है, जिससे हजारों करोड़ की बचत हुई है, जिससे समय की बचत हुई है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हुई है और साथ ही साथ पारदर्शी तरीके से शासन को लागू किया गया है। दूसरी बात यह है कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल दिया जा सकता है, क्योंकि भारत कहते हैं कि गाँव में बसता है। अहमदाबाद में जरूर रोड शो हो रहा है, आप देखिए जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं दिखाती है किस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता को लोग देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने घरों के छत से उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बीजेपी के रणनीतिकारों के सकून को और बढ़ा रही होंगी कि किस तरह से बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उसका जिक्र अशोक कभी कर ही रहे थे। और हम देखते हैं कि गुजरात में दरअसल हर एक समस्या पर एक योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ। जिन इलाकों में पानी नहीं था पानी पहुंचाया गया, पशुधन की चिंता की गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पता था कि किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो उनके पशुपालन में एक क्रांति लानी होगी और गुजरात एक सफलता के मॉडल के तौर पर जाना जाता है, चाहे वो सहकारिता में हो या फिर हमने देखा कि पशुओं को जो मुफ्त टीका लगाने का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ, जिससे पशु बीमार न हो और किसानों की आय घटे ना, किसानों की आय जी शैलेंद्र, निश्चित तौर पर वो भी हम देखते हैं गुजरात में सफलतापूर्वक लागू होते। और आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि कितना गहरा कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की जनता के साथ। जी शैलेंद्र, आप रहिए, एक सवाल मैं अशोक जी से पूछता हूं। अशोक जी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बहुत ज्यादा बात होती, प्रधानमंत्री कहते हैं साहब प्रो इनकम्बेंसी है यहाँ पर, ये एंटी इनकम्बेंसी बनाम प्रो इनकम्बेंसी और ये तस्वीरें, इनको जोड़कर आप किस तरह से इसको परिभाषित करें? क्योंकि 27 साल का शासन और लगभग 2 दशक के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगभग 1.5 दशक तक खुद उन्होंने सब राज्य को नेतृत्व दिया अपने आप में, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि काम के प्रति जनता की स्वीकारता, प्रो इनकम्बेंसी? देखिए, एक आनंद सबसे बड़ी बात है, ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जो लोग बात करते हैं ना चुनावों के संदर्भ में, मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषकों का ये जो जुमला है बहुत पुराना हो गया। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था देश में, हम जानते हैं कि सरकारें जब सत्ता में आती हैं उसके बाद उन सरकारों से लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब ये अपेक्षाओं पर लोग, सरकारें खरी नहीं उतरती, नेता खरे नहीं उतरते, तो जनता बदल देती है। आज भी देखिए कई राज्य ऐसे, अभी उत्तराखंड के चुनाव है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, जिस उत्तर प्रदेश की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में रोड शो किया था, तो उस उत्तराखंड में कहा जाता था कि वहाँ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहां पर बीजेपी ने वो परंपरा तोड़ी। उत्तर प्रदेश में लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ज्यादा बड़ी ताकत से आई। 2019 में लोग कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी होगी, बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लेकर आई। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी का जो एक पुराना जो राजनीतिक विश्लेषकों का दिया हुआ जुमला था ना, जिसको कहते हैं कि सरकारों की नाकामी जिस जुमले के अंदर छुपा दी जाती थी, उस पूरी परंपरा को नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त कर दिया अपनी राजनीतिक कार्यशैली से। और उन्होंने इसकी शुरुआत गुजरात में ही की थी। गुजरात में देखिए वो लगातार जो है इतने समय तक 12 साल तक जो है वो जो है 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल तक गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने रहे। एंटी इनकम्बेंसी उनको फेस नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो लगातार जनता के बीच कनेक्ट करते थे, जाते थे। मैं आरिंद्र आपको एक बात और बताऊं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय की आपको बात बता रहा हूं, होता क्या था कि वहां पर जब कभी भी रविवार का दिन होता था, छुट्टी का दिन होता था, तो हम कभी रिपोर्टिंग के लिए जाते थे और चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो है मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में मिले, तो मुख्यमंत्री ना अपने कार्यालय में मिलते थे ना अपने घर पे मिलते थे। होता क्या था कि नरेंद्र मोदी तमाम अधिकारियों को अपने घर बुला लेते थे सुबह, और वो कहते थे कि चलो आज उस गांव चलते हैं और वहां जो ये योजना चल रही है उसका पूरा हिसाब किताब लेकर आते कि वो योजना किस हिसाब से काम कर रही है। तो वो जनता के बीच निकल जाते थे। तो आप देखिए, जनता से कनेक्ट जब होता है और आप जब लगातार एक के बाद एक योजनाओं पर रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, अभी पानी की बात हुई, सवनी जल योजना की बात की, गुजरात में पानी के लिए किस तरह की मारामारी होती थी, वहां पर पानी को लेकर दंगे हो जाते थे। गुजरात में ट्रेन जाती थी एक समय में पानी को लेकर के, और वहां ये कहा जाता था कि कई इलाके ऐसे थे गुजरात में जहां पर यह कहा जाता था कि उन इलाकों में लोग अपनी बेटियों की शादियां नहीं करते थे। वो कहते थे अगर हमने यहाँ अपनी बेटी की शादी कर दी तो बेटी की जिंदगी हराम हो जाएगी, क्योंकि उसको
पानी नहीं मिलेगा, पानी के लिए उसको 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये सब चीजें देखिए एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं पर एक एक करके काम किया और उसका नतीजा ये है कि लोग याद करते हैं, लोग भूलते नहीं। देखिए जो कनेक्ट होता है नेताओं का, और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी वाली जो बात है वो पीछे रह गई और अब प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि वो यही कहते हैं कि हमने ये करा अब ये करेंगे। वो हमेशा एक कदम आगे की बात करते हैं और कहते हैं कि ये हम अगली बार ये चीज करेंगे, और वो रणनीति बना करके इस बार देखिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपने जो आप घोषणा पत्र देखेंगे उसमें भविष्य के लिए खाका तय किया कि गुजरात अब अगले 5 साल में कहां जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो फॉर्मूला होता है, जो एक जुमला होता है, अब वो पुराना पड़ गया। मुझे लगता है कि उसको अब उसका जिक्र करना बंद करना चाहिए। बिल्कुल, और शायद आप जो बात कह रहे हैं अपनी कार्यशैली से लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया है, शायद इसी बदलाव की वजह से लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। शैलेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सौराष्ट्र जैसे कच्छ जैसे इलाकों में जहां पे पानी को लेकर त्राहिमाम की स्थिति हुआ करती थी, लोगों का जीवन बहुत मुश्किल था। लगभग 20-22 मंजिला ऊपर तक पानी को ले जाना, तकनीक का इस्तेमाल करना, व्यवहारिक सोच के साथ में दूरदर्शी नजरिया अपनाना, ये दिखाता है कि शायद एक दूरदृष्टि का जो विजनरी नेता होता है वही एक इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री अभी मौजूदा चुनाव में कह रहे हैं कि अभी का नहीं, अगले 25 साल का सोचिए इस अमृतकाल में कैसे राज्य को और देश को आगे बढ़ाना है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आर्येंद्र, न केवल समस्याओं को समझते हुए उस समस्याओं को दूर करना, बल्कि संसाधनों का कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, ये दिखाता है गुजरात की जो तमाम विकास यात्रा है। उसमें नर्मदा का पानी जिस तरह से पहुंचा है कच्छ तक, कच्छ के ही लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते थे कि नर्मदा का पानी नहरों के जरिए कच्छ में पहुंच सकता है, और आज हम देख रहे हैं कि हर घर में नल के जरिए वो पानी पहुंच रहा है, जो कल्पना में भी कई बार वहाँ के लोग नहीं सोचते थे। वो विकास अब संभव हुआ है कच्छ में, और साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से आप देखें जिस तरह से कच्छ के रण को प्रचारित किया गया, उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है। और अब इस तरह की तमाम परियोजनाओं को गुजरात में क्षेत्रवार पूरा होता हुआ देखते हैं। बनासकांठा चले जाइए, जो एक जमाने में रेगिस्तान के तौर पर वहाँ बहुत कम पानी है, सभी लोग जानते थे। आज बनास डेयरी देश और दुनिया में नाम कर रही है, जिससे तमाम जो पशुपालक हैं, जो किसान परिवार हैं, उनकी आय में इजाफा हुआ है। इस तरह से वहाँ पानी की समस्या को दूर किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम ऐसे तमाम विकास परियोजनाओं को लागू होते हुए देखते हैं और जनता की भागीदारी उसमें देखते हैं कि किस तरह से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। और प्रधानमंत्री की एक शैली रही है कि जनता का फीडबैक लेना, जनता से जुड़े रहना, और वही शैली, वही कनेक्ट का जो शैलेंद्र, जो आप पानी की बात कर रहे हैं ना, शैलेंद्र, जो आप मैं अपनी बात ये इस वक्त भी आप देखिए एक शहर से जहाँ से एक बाजार से जहाँ निकल रही है, आप देखिए युवाओं को किस तरह से वो चढ़े हुए हैं ऊपर, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, अपने बिल्डिंग के दरवाजे से झरोखे से जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां खड़ा है, सिर्फ एक झलक पा लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी की एक झलक देख लेना चाहता है। आप देखिए इस तरह से लोग खड़े हैं। शैलेंद्र, जो आप पानी की बात कर रहे थे ना, आज सौराष्ट्र में मतदान हो रहा है, सौराष्ट्र क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, जिनमें राजकोट की सीट भी है, राजकोट शहर में भी है। आप सोचिए वही राजकोट जिला है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिस राजकोट में ट्रेन से पानी जाता था, उस राजकोट में ट्रेन से पानी जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2012 में उस जो सवनी योजना आई और बाकी सब चीजें हुई, तो उसके बाद वो जो पानी की समस्या थी राजकोट में उसको खत्म कर दिया। और आरेंद्र, हम लोग अभी राजकोट में जब डीडी कॉन्क्लेव करने गए थे जी, तो जब राजकोट के मुद्दों की बात चली, आप सोचिए राजकोट में किसी भी व्यक्ति ने पानी का मुद्दा उठाया तक नहीं। आप सोचिए कि करीब करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस राजकोट में सबसे बड़ा मुद्दा पानी की कमी होता था, आज वहां पर वो मुद्दा ही खत्म हो गया है। पानी की कमी को लेकर किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि हमें पानी की समस्या है। ये डेवलपमेंट का जो फोकस डेवलपमेंट जो होता है
प्लान डेवलपमेंट जो होता है, इससे लोगों की जो जिंदगी बदलती है, ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को पीछे छोड़ देती है। अशोक जी, आप जो बात कह रहे हैं उसको इस तरह से, क्योंकि हमने देखा कि केंद्र की मौजूदा योजनाओं में सैचुरेशन तक जाने का जिक्र है, यानी 100% हासिल करने का जिक्र हो, शायद ये गुजरात में कई चीजों में हो गया है, शायद वहीं से ये उनको स्फूर्ति मिलती है बाकी देश भर में। महिलाएं छतों पर किस तरह से चढ़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये लगातार वो शहर के इलाके अहमदाबाद से जहां पे हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद है, और जो इमारतें हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, घर हैं, खिड़कियां हैं, जो अशोक जी ने भी कहा ना, झरोखे से झलक पाने की भी एक ललक दिखाई पड़ रही है, वो लगातार बना हुआ है और लोग अपनी छतों से प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते हैं। जहां जहां भी लोग मौजूद हैं, महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, और लगातार ये तस्वीरें हम बीते कितने समय से देखते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर लोगों का जो उत्साह है, जो स्वीकारता है, उनके प्रति जो प्यार है, समर्पण है, वो फूलों की वर्षा के माध्यम से सीधे तौर पर तस्वीरों में परिलक्षित होता दिखाई पड़ रहा है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों के प्रति उनका एक विश्वास है कि ये वो व्यक्ति है जिसने गुजरात को बदला, देश बदल सकता है। ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर वो मादा है, जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं उसको बदलने का एक इसके पास में विजन है, विजनरी लीडर है। शायद यही भरोसा है जिसकी वजह से न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के सर्वोच्च नेता के तौर पर स्वीकारता और एक वैश्विक नेता के तौर पर भी उनकी जो स्वीकारता वो बढ़ती जा रही है। और जो आज हम जिक्र कर रहे थे G20 की प्रेसिडेंसी मिलना भी, ये भी उसके साथ कहीं अलग करके नहीं देख सकते, इसको भी इसके साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। अशोक जी, बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे महिलाओं की जो है लंबी कतार दिख रही है। महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, लंबी कतार है, सबके हाथ में फूल हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले और वो फूल जो है, देखिए एक छोटी सी बच्ची किस तरह से उछल उछल कर नरेंद्र मोदी की तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हाथ हिला के, देखिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं और अनुशासन भी एक तरह से दिख रहा है। देखिए कई बार पीछे हमने देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी लोग सड़कों पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अनुशासन भी दिख रहा है। लोग अपने फूल जब उनको पुष्प वर्षा करनी है तो वो थोड़ा आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए, क्योंकि काफिला है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना होता है। और इस पूरी यात्रा को नाम ही दिया गया पुष्पांजलि यात्रा। अब ये इस पूरी यात्रा की, इस रोड शो का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया पुष्पांजलि यात्रा। और आरेंद्र, एक बात और मैं बड़ी आपको दिलचस्प बता दूं, वो ये कि बीते 2 दिनों से 4 देशों के जो राजनयिक है, 4 विदेशी राजनयिक, जिनमें डेनमार्क, यूके, ऑस्ट्रिया और एक और देश है, उन 4 देशों के राजनयिक इस समय गुजरात में है, अहमदाबाद में है। वो भारत में चुनाव की प्रक्रिया और खास करके बीजेपी ने एक कार्यक्रम अपना शुरू किया, कनेक्ट विद बीजेपी, जिसमें बीजेपी जो विदेशी राजनयिक हैं उनके साथ लगातार कनेक्ट करती है और वो बीजेपी क्या है, बीजेपी किस तरह से काम कर रही है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि 4 राजनयिक जो हैं वो गुजरात में हैं। उन्होंने नरोडा में कल, जो अहमदाबाद की नरोडा सीट जहाँ से यात्रा शुरू हुई, नरोडा में कल उन्होंने जो चुनाव प्रचार था उसको देखा और आज वो वहाँ रुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो को देखने के लिए। तो आप सोचिए कि मुझे लगता है कि वो विदेशी राजनयिक जो हैं वो इस यात्रा को देख रहे होंगे तो वो अभिभूत होंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा ये वो कह रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने विदेशी राजनयिक का जिक्र किया तो मुझे इस बात का एक इल्म ध्यान आया कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे साहब, जिनका जापान में एक तरीके से मर्डर कर दिया गया, बावजूद उसके जब वो आए थे गुजरात में तो उस वक्त भी एक रोड शो हमने देखा था, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास था। तो कैसे अतिथि देवो भव की जो एक परंपरा है उसका निर्वहन भी गुजरात ने किया था और उस वक्त भी किस तरीके से लोग लगातार आए थे। तो दुनिया के तमाम देशों में लोगों में इस बात का कौतूहल है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का लगाव है, आकर्षण है, ये निश्चित तौर से दुनिया में कौतूहल का विषय बना हुआ। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, ये भी अपने आप में जिस बात का जिक्र अशोक जी ने किया कि दुनिया के लिए भी एक कौतूहल का विषय है, हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका जिक्र करते हैं। नीरज, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के लिए भी कौतूहल बना हुआ है कि साहब कैसे भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे ज्यादा वोटों से लगातार जीतकर इतनी बड़ी आबादी का स्नेह और प्रेम हासिल करते रहना, ये भी अपने आप में केस स्टडी के तौर पर। नीरज, देखिए बिल्कुल रिकॉर्ड है और आनंद आप इसे इस दृष्टि से भी देखिए कि इसके पीछे एक बड़ी मेहनत, बड़ी लगन और कार्यकर्ताओं का संघर्ष भी है। अशोक आपके साथ हैं और अशोक को भी पता होगा कि जब शुरुआती दौर में जब पार्टी गुजरात में थी
तो एक स्थिति ऐसी थी कि पार्टी के लिए कोई कार्यालय के लिए जमीन तक नहीं देता था। और आज आप उसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को देखिए, पिछले 27 साल से लगातार सत्ता में है। और ये कमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही है। और आज आप देखिए कि जितने भी लोग इस रोड शो में आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी के चेहरे पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है, कोई हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहा है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, और अशोक सही कह रहे थे, एक समय था इस अहमदाबाद में ही और जिसके ऊपर बॉलीवुड ने एक महिमा मंडन करते हुए एक मूवी भी अशोक बनाई थी, रईस जिसका नाम था। उसका इतना आतंक था कि उसके मोहल्ले में पुलिस जाने से डरती थी, ऐसा आलम था इस अहमदाबाद के अंदर। और उसके बाद आप आज देखिए कि रात के 2 बजे 3 बजे जो महिलाएं हैं परिवार के साथ और खुद अकेले, वो किसी भी शहर में आसानी से जा सकती हैं, घूम सकती हैं और कोई भी परेशानी उनको नहीं होती। और ये आप दृश्यों को देखें, सचमुच अद्भुत दृश्य है। और देश के इतिहास में मुझे लगता है कि इतना बड़ा रोड शो किसी ने नहीं देखा होगा। और सिर्फ ये रोड शो नहीं है, सैलाब है जिसमें अहमदाबाद के लोग उमड़ पड़े हैं। और ये एक आनंद हम कहें तो एक रणनीति भी है। आप अगर देखें कि चुनाव का जो समय है वो चल रहा है और गुजरात के अंदर अगर अहमदाबाद की हम बात करें तो सभी सीटों तक एक साथ पहुंच प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनसे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक रणनीति भी है और प्रधानमंत्री ने बखूबी पूरे गुजरात के अंदर इस रणनीति को उतारा है और उसका परिणाम भी हमेशा देखने को मिला है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, उस लोकप्रियता के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। लगातार जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के लोगों के लिए भलाई की, गुजरात के जो सबसे पिछले पायदान पे जो लोग खड़े थे उनको किस तरीके से वो आगे लेकर आए। और अभी जब चुनाव प्रचार जिस समय कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी था कि मेरा जो रिकॉर्ड है आप भूपेंद्र भाई को उस बड़े रिकॉर्ड से जीत दिलाइए। तो इसका मतलब साफ साफ है आरेंद्र कि प्रधानमंत्री साथ लेकर जो उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति है, उनकी पार्टी का व्यक्ति है, उसे आगे हमेशा ले जाने के लिए उनकी राजनीति इस तरह की रहती है। जी भुज की अगर हम आनंद बात करें, आपने देखा होगा कि जब भूकंप आया था तब पूरा का पूरा भुज तबाह हो गया था और आज आप देखिए विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये एक कौशल का ही कमाल है, दूरदृष्टि का ही प्रधानमंत्री की कमाल है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ गुजरात को ही प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं और यही कारण है कि देश भर में उनको जो लोग हैं उसी सम्मान और दृष्टि से देखते हैं। वो किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय महिलाएं हैं या जो तमाम स्वयंसेवी संघ हैं उनको प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि आप जब भी कहीं घूमने के लिए जाइए, उनसे कुछ खरीदिए। तो ये बताता है कि देश के लोगों को किस तरीके से प्रधानमंत्री आगे लेके जाना चाहते हैं और यही गुजरात मॉडल है जिसकी पूरी दुनिया में आनंद चर्चा होती है। नीरज, एक बात मैं नीरज आनंद, जहां पे 2 चीजें मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं देखिए प्रधानमंत्री का रोड शो है और ये रोड शो लगातार चल रहा है, लोग वहां पर हैं, एक तस्वीर, एक जारी पिक्चर मैसेज जा रहा है। कई बार लोग क्यों कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर कहते हैं कि भाई ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये लोग मार्केटिंग करके चुनाव जीत। आपने कई बार विपक्ष के नेताओं के बयान सुने होंगे कि ये लोग मार्केटिंग करके चुनाव जीत जाते हैं। मैं आपसे सीधी सी बात है, देखिए 27 साल से गुजरात में बीजेपी है, आप मार्केटिंग करके, आपका अगर प्रोडक्ट खराब है तो क्या आप मार्केटिंग करके सिर्फ 27 साल तक अपने प्रोडक्ट को जिंदा रख सकते हैं? हरगिज नहीं रख सकते। अगर आपका प्रोडक्ट बेकार है तो आप उसकी कितनी ही मार्केटिंग कर लें, क्योंकि माउथ टू माउथ मार्केटिंग सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। एक व्यक्ति के पास अगर खराब प्रोडक्ट आता है, आज की तारीख में 10 जगह वो कहता है कि उसका खराब प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का भट्टा बैठ जाता है। अगर 27 साल से बीजेपी वहां पर है और अब जो है 2019 के बाद जो है 2024 का लोकसभा चुनाव हम देखेंगे, अगर सिर्फ मार्केटिंग होता तो 2014 के बाद 2019 में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को नहीं मिलती। और दूसरी बात में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लोग ढोल ताशे लेके भी खड़े हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए।
यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर कई जगह प्रधानमंत्री की इस यात्रा में कुछ पड़ाव भी हैं जहाँ पर वो रुकेंगे। ये वो पड़ाव है, जी हाँ, ये प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव है ठक्कर बापा नगर में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त प्रधानमंत्री ठक्कर बापा नगर में है, जहां वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसे श्याम शिखर 4 रास्ता कहा जाता है। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री के इस रोड शो की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इस रोड शो में लगभग 35 ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर प्रधानमंत्री तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत में आपके को आगे बढ़ाने में अपना बहुत योगदान दिया है उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। और शायद इसीलिए आपने इस यात्रा का नाम पुष्पांजलि यात्रा भी बताया था। निश्चित तौर से ये उन लोगों के प्रति एक भाव प्रकट करने के तरीके से भी है जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है गुजरात को, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और लगभग 35 ऐसे पड़ाव इस 50 किलोमीटर की यात्रा में होंगे जहां पे प्रधानमंत्री संभावित तौर पर रुकेंगे, माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे और कृतज्ञता व्यक्त करेंगे ऐसे महापुरुषों के प्रति जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है। उन्हीं में से ये पहला पड़ाव। जी हाँ, पहला पड़ाव सरदार पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर। और सरदार पटेल की जब बात चलिए, क्योंकि यहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन चुनाव में और गुजरात के चुनाव होते हैं तो सरदार पटेल जी का मुद्दा बार बार उठता है। इन चुनाव में भी सरदार पटेल को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है। और क्योंकि केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये देखिए प्रधानमंत्री भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, तो केवड़िया में सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्थापित की गई। और बीजेपी बार बार ये सवाल उठा रही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी है, इस संदर्भ में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बीजेपी बार बार कांग्रेस के नेताओं से पूछ रही है। क्योंकि कांग्रेस के नेता गुजरात में कहते हैं कि भाई सरदार पटेल जो हैं वो तो कांग्रेस के नेता थे, हमारी विरासत है वो। बीजेपी कहती है आपकी विरासत है, लेकिन केवड़िया में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है वहां आज तक कौन सा कांग्रेस का नेता गया पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए? क्या आज तक किसी कांग्रेस के नेता ने वहां जाकर सरदार पटेल की प्रतिमा के साथ क्या कोई सेल्फी ली है? यह सवाल कांग्रेस से बीजेपी बार बार पूछ रही है और इसके जवाब में भले ही कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस का कोई भी नेता सरदार पटेल की केवड़िया की प्रतिमा के साथ, केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ अपनी तस्वीर, अपनी सेल्फी नहीं दिखा पाया। बार बार बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर राहुल गांधी या सोनिया जी या कांग्रेस के अभी मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात गए तो क्या उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया? क्या वो केवड़िया जाकर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा देखी? और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी तो कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसे पैसे की बर्बादी कहा था कि इससे पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हम सरदार पटेल को, जो इतना उनका बड़ा कद था भारत में, दुनिया में, हम उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज इस यात्रा का पहला जो पड़ाव था उसमें भी पुष्पांजलि उन्होंने सरदार पटेल को अर्पित की। दूसरी बात मैं जो आरेंद्र और नीरज में आपसे कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इन यात्राओं से, इन रोड शो से क्या होता है। मैं आपको 2 उदाहरण आपको सिर्फ देता हूं। मैंने कहा आपको गुजरात का मैंने उदाहरण दिया, अहमदाबाद का उदाहरण दिया जब नगर निगम के चुनाव हुए थे 2005 में। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं, आप ये देखिए कि 2019 में, ये मेरा खुद का देखा हुआ, मेरा अनुभव किया हुआ है। 2019 में झारखंड में मैं था, रांची की लोकसभा सीट पे सुबोध कांत सहाय कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर ये सब लोग, वहां पर जितना एनालिसिस था, जितने राजनीतिक विश्लेषक थे, वो कह रहे थे कि रांची की सीट बीजेपी हारेगी 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद एक दिन प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो वहां छोटा सा एक रांची के अंदर होता है। और आप यकीन करेंगे अगले दिन से रांची के अंदर, रांची शहर के अंदर मुझे जो मिला उसने कहा कि बीजेपी ये सीट जीत रही है। प्रधानमंत्री के कल के रोड शो ने हवा बदल दी है। और एक्चुअल में आप देखिए रांची में लोकसभा चुनाव नतीजे देखिए कि किस तरह से पलट गए। दूसरा उदाहरण 2019 में वाराणसी का है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो हुआ, उसी दिन आपको याद होगा उसी दिन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर पहुंची थी, उनकी भी रोड शो चल रही थी। रोड शो देख करके जो है आपको अंदाजा हो गया था, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने, विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई थी कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी में घेर दिया जाए। अजय सिंह को उन्होंने, एक दबंग नेता को जो वहां के लोकल थे, उनको उतारा था और उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री को हम
चुनाव के बाद जो है 20 फीट नीचे गाड़ दूंगा। ये उनका स्टेटमेंट था कि नरेंद्र मोदी को 20 फीट नीचे गाड़ दूंगा मैं चुनाव के बाद। लेकिन हुआ क्या, अजय सिंह साफ हो गए, जमानत जब्त हो गई और आप देखिए वहां पर प्रधानमंत्री थंपिंग मेजोरिटी से जीते। तो ये जो यात्रा निकलती है ना, ये जो कनेक्ट के लिए निकलती है, इसका बहुत गहरा इंपैक्ट होता है। इसके ऊपर एक अलग से शोध किया जा सकता है मुझे लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और उसके इंपैक्ट का। और आज की यात्रा अपने आप में इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री एक वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ दिल्ली में बैठता है, जिसके अपना एक बहुत बड़ा कोई घर है या ऑफिस है जहां पे वो 4 दीवारी में कैद रहता है। ये वो प्रधानमंत्री है जो जनता के बीच रहना ज्यादा मुफीद समझता है। ये वो प्रधानमंत्री है जो जनता से सीधा कनेक्ट करना मुफीद समझता है। ये वो प्रधानमंत्री है जो जनता से सीधा संवाद करना मुफीद समझता है। और शायद इसीलिए जनता से सीधे जुड़े रहने का फायदा हम जब कभी भी नतीजे आते हैं किसी चुनाव के, तो उसमें परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही आज 50-52 किलोमीटर के इस मेगा रोड शो के समय से हम लगातार देख रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगभग हो चुका है इस रोड शो को शुरू हुए। और अहमदाबाद की सड़कों से जहां कहीं से भी प्रधानमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है, हजारों की संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। लोग अपने घरों पे खड़े हैं, सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। अभी हमने देखा किस प्रकार से एक बगल से ओवरब्रिज था, वहां पर भी फ्लाईओवर के पास भी बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। पुष्प वर्षा लगातार हो रही है। और प्रधानमंत्री के इस 2 दिन के कार्यक्रम में आज की अगर बात की जाए तो सुबह से वो 3 रैलियां कर चुके हैं। अब तक के इस बार के विधानसभा चुनाव में लगभग 30 से ज्यादा रैलियां वो आज तक कर चुके हैं। लगभग 50-51 रैलियां करने का संभावित तौर पर कार्यक्रम है। रोड शो की बात अलग की जा सकती है। ये एनर्जी, ये ऊर्जा किस दूसरे राजनेता में दिखाई पड़ती है जिसके पास इतना बड़ा कद हो, इतना बड़ा पद हो और वो व्यक्ति इस प्रकार से जनता से जुड़े रहने के लिए एक तरीके से लालायित नजर आए, क्योंकि जनता के साथ जुड़े रहना ही लोकतंत्र की सच्ची सेवा है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री का जनता से संवाद, कनेक्ट, जिसका जिक्र अशोक जी आप कर रहे थे कि रोड शो के माध्यम से जनता को लगता है कि हाँ, हमारे ही बीच से निकला हुआ व्यक्ति जिसको हमने वोट की ताकत देकर दिल्ली पहुंचाया, वो हमसे फिर मिलने के लिए आया हुआ है। शायद यही लगातार एक भावनात्मक रिश्ते को बनाता है। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, किस तरह से इस स्नेह को, इस जुड़ाव को आप वहां पर महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि भावनात्मक लगाव या कहा जाए गुजरात की अस्मिता के साथ जुड़े हुए अपने बेटे को देखने का एक जो भाव है, उसको आप कैसे पढ़ रहे हैं वहां पे मौजूद? नीरज। देखिए, बिल्कुल आनंद, और इस समय आप अगर इन दृश्यों को देखें तो प्रधानमंत्री बापू नगर इलाका है, वहां से उनका ये काफिला, ये रोड शो वहां से निकल रहा है। जुड़ाव निश्चित तौर पर आप आज देखें कि जिस समय गुजरात विधानसभा चुनाव का समय था, उसी समय प्रधानमंत्री को मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल दूंगा आनंद, कि 2 बच्चों के बारे में पता लगता है। आदिवासी 2 बच्चे थे जिनके माता पिता की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। दादा दादी के पास वो बच्चे रहते थे दोनों, और 1 साल पहले उनके दादा दादी और नाना नानी की भी मृत्यु हो गई। एक वीडियो वायरल हुआ था और वो प्रधानमंत्री तक पहुंचा। प्रधानमंत्री तुरंत सक्रिय हुए और यहाँ पर बीजेपी के जो लोग थे, सरकार के जो लोग थे, उनको दिशा निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बच्चों के सपनों को उनकी जो उड़ान है वो रोकनी नहीं चाहिए। ये बच्चे अनाथ हैं, लेकिन इनको लगना नहीं चाहिए कि ये अनाथ हैं। इनके पीछे पूरी पार्टी और जो सरकार है वो खड़ी होनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री जब रैली करने के लिए गुजरात में आए, भरूच में, इन बच्चों से प्रधानमंत्री खुद रूबरू हुए और उसके बाद सरकार को उन्होंने दिशा निर्देश दिए। बच्चों से उन्होंने बात भी की। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री सबके पास कितनी आसानी से पहुंच जाते हैं। और आप आनंद, अगर आप प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने देखा है कि तमाम माध्यम है उनको कनेक्ट करने के लिए। आप ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, उनकी जो साइट है वहां पर जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मन की बात में समय समय पर करते हैं कि उन्हें चिट्ठी मिलती है, बताते हैं कि किसी देश के किसी राज्य में एक युवा की सोच इस तरह की है। तो ये कनेक्ट ही है और हमने बड़े लंबे समय से देखा है, और अशोक भी काफी लंबे समय तक गुजरात के अंदर इलेक्शन कवर करते रहे। प्रधानमंत्री हमेशा उनकी कोशिश यही रहती है कि लोगों से सीधे कनेक्ट करें, लोगों से सीधे बात करें, उनके बीच में कोई नहीं आए। और यही कारण है कि ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये हुजूम वही अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता, क्योंकि आप अगर गुजरात के किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो उनको लगेगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए वेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे बीच के व्यक्ति हैं, हमारे बीच से निकल कर गए,
हमारे ही साथी हैं। और आप देखें, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रैलियां भी संबोधित करते हैं तो रैली के आखिरी में एक वाक्य जरूर कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं किसी भी रैली में, जब वो अपने गांव जाएं तो वहां पर जाकर ये जरूर कहें कि उनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी आया था। ये नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री आया था। तो ये बताता है कि किस तरह का कनेक्ट उनका गुजरात के लोगों के साथ है। और वो ये कहते भी हैं कि मुझे गुजरात की एक एक चीज के बारे में मालूम है। लंबे समय तक नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोगों को कह रहे हैं थोड़ा सा रास्ता, जब आप उनके हाथों का इशारा देखें, क्योंकि लोगों का हुजूम इतना है, भीड़ इतनी है कि वो जो है वो सब सड़क पर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा की दृष्टि से भी लगातार लोगों को इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा गाड़ी से थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि लोग जो है उत्साह में। और मोबाइल फोन से आप देखिए, क्योंकि रात हो गई है, अंधेरा जो है, सूरज ढल चुका है। अब आपको इस वक्त पहले जो मोबाइल दिख रहे थे वो आपको अलग तरह से, लेकिन अब जो है मोबाइल की रोशनी से आपको समझ में आएगा कितने मोबाइल जो हैं अपने प्रिय नेता की एक छवि जो है अपने मोबाइल में कैद करने के लिए किस हद तक जो लोग लालायित हैं। ये आप देख रहे हो, लगातार आप देखिए पुष्प वर्षा हो रही है। और मैं अपने पैनल से सिर्फ ये अनुरोध करूंगा कि अगर हो सके तो ये जो आवाज़, जो एम्बियंस साउंड है, क्योंकि वहाँ पर हम सुन रहे हैं लोगों की खुशी के मारे जो लोग चीख रहे हैं, लोग जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, उसकी आवाज़ थोड़ा सा हम बढ़ाएं तो देखिए हम महसूस कर पाएंगे उस जी हाँ, आप सुनिए लोगों की आवाज़ सुनिए, कुछ देर सिर्फ लोगों की आवाज़ सुनिए। ये महसूस कीजिए, ये वो दीवानगी है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बना देती है। ये वो दीवानगी, आप इसको महसूस कीजिए, ये दृश्य देखिए, ये आवाजें सुनिए, लोगों की आवाजों में क्या उत्साह है, गजब का उत्साह आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप नोट करेंगे, वो ये कि सड़क के किनारे, अब क्योंकि शाम हो रही है, हमें लोग उस हिसाब से अंधेरे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, लोगों की डिटेलिंग नहीं दिखाई देगी। लेकिन इससे पहले जो दृश्य थे वो जो मैंने नोट किए, और मेघना हमारे साथ जुड़ेंगी, मैं मेघना से इस पर बात भी करूंगा। मेघना खुद भी गुजरात से, मेघना आप जुड़ चुकी है हमारे साथ? जी अशोक, मैं आपको सुन सकती हूं। मेघना मैं आपसे, क्योंकि आप खुद भी गुजरात की हैं, मैं यहाँ पर अब तक देख रहा था कि सड़क के किनारे 50, 60, 70 साल की महिलाएं, और हम ये अक्सर बात करते हैं चुनावी विश्लेषक, अभी भी देखिए आपको जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं उसमें भी महिलाएं दिखाई देंगी। अब राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है, महिलाओं में जो लोकप्रियता है, वो दरअसल जीत का एक बड़ा फैक्टर बनती है। और हमेशा जो है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बाकी राज्य हो, वहां 2 से 3% महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बीजेपी के पक्ष में ज्यादा मतदान करती हैं। और यहां भी मैं देख रहा हूं महिलाओं की हुजूम, देखिए आप, ये हुजूम देखिए आप, महिलाएं, ये लोगों का हुजूम आप देखिए, सड़क के किनारे आपको दूर दूर तक जो है लोग दिखाई देंगे, ये हुजूम आप देखिए, इसको आप एंजॉय कीजिए। तो जो महिलाएं हैं, 50, 60, 70 साल की महिलाएं, वो अपने घर से निकलकर सड़क के किनारे खड़ी है नरेंद्र मोदी की रोड शो को देखने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। ये जो महिलाओं के साथ कनेक्ट है, ये क्या है, इसको कैसे आप देखेंगी मेघना? देखिए अशोक, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक तरीके का कनेक्ट है वो बहुत साफ तौर पर नजर आता है। और जिस तरीके से रोड शो, अगर हम कहें अशोक, साफ तौर पर 50 किलोमीटर का ये रोड शो, आप बहुत समय से पत्रकारिता में हैं और आपने कई चुनाव देखे होंगे, लेकिन ये बात गलत नहीं होगी कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर का भी सबसे लंबा रोड शो हो सकता है, या सबसे लंबे रोड शोज में से एक हो सकता है। और आप जिस तरीके से देखिए, ये जो सड़कें हैं अहमदाबाद की, ये सड़कें काफी चौड़ी सड़कें हैं, ये कोई गलियां नहीं है, ये छोटी सड़कें नहीं है, ये काफी चौड़ी सड़कें हैं, BRTS के भी लेन हैं इन सड़कों पे। और वहां पर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ से इशारा करके लोगों से गुजारिश करनी पड़ रही है कि जो काफिला है उसको पास होने के लिए रास्ता दे, तो बहुत बड़ी बात है जिस तरीके का जो हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी अपने संबोधन में माताओं बहनों के साथ खास तौर पर कनेक्ट करते हैं। जब वो हीराबा की बात करते हैं, जब वो हीराबा ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया उसकी बात करते हैं, तो माताएं बहनें उसे रिलेट करती हैं।